Chalo. Good afternoon, all. Is my voice clear? Is the voice clear? Voice clear? हेलो. लो तो नहीं है ना? क्लियर? लो तो नहीं है ना? स्टार्ट करें? क्लियर? लो तो नहीं है ना? सो करें? या अगर लो है तो आप प्लीज एडजस्ट कर लेना. चलो, आई एम स्टार्टिंग. रेडी? So, wherever theory is required, I'll be giving you theory. Correct? Okay. चलो start करते हैं सर. So, how is the preparation going on? इसको मैं ये नेटवर्क से कनेक्ट करूं क्या? हाँ, एयरटेल. हाँ, we are actually planning sound bit Mr. We are actually planning full test का क्वेश्चंस बनाए कुछ. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सर. ओके. Which of the following is a lower pair, my dear students? Lower pairs have surface or area contact, and higher pairs have line or point contact. For example, and why they are known as lower pairs? Do you know the reason? Because as there is a area contact, the contact stresses will be low. एक बार देखना सर. Suppose I have a contact like this. As the contact is point or line, the area of contact is less, therefore the stresses are more. That's why they are known as higher pairs. Higher pairs. Higher pairs का मतलब क्या होता है सर? It is either line or point contact. ठीक है. Can you give examples of higher pairs? See, I'm not just interested in answer, sir. देखो देखो. I'm not just interested in answer, sir. ठीक है? Okay. देखो पहले कॉन्सेप्ट्स ले लेंगे. ओके, जस्ट चिप्स ओनली इन मॉक. डोंट वरी, सब सही हो जाएगा. पहले फोकस करो. हाँ, हायर पेयर. तो व्हाट इज लोअर पेयर? लोअर पेयर्स पे क्या होता है? इट विल बी एरिया कॉन्टैक्ट. तो एरिया कॉन्टैक्ट होने के कारण, बिकॉज ऑफ द एरिया कॉन्टैक्ट, देखो बिकॉज ऑफ एरिया कॉन्टैक्ट द कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस विल बी लो. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लोअर पेयर्स. अब देखो, which of the following is a lower pair? Piston and cylinder. You know, my dear student, piston cylinder has area contact. Has area contact. So surface, पूरे surface पे contact होगा. समझ गए ना? तो piston is circle ऐसा होगा. देखो, piston is something like this. Okay, and on this there is a contact. So इस पे contact होगा. So therefore it is a lower pair. Yes. Cam and follower, it is a higher pair. Gear, it is a higher pair. Now doubt आ रहा है belt drive में. तो you may be thinking, sir, if it is a belt drive, देखो this is the belt, so therefore contact तो like surface area पे लग रहा है, but it is not correct. Belt drive is a higher pair. Do you know the reason for that? Actually, how the power is transmitted in belt drives? Because of friction. Actually, if you see the pulley something like this, मतलब actually we have some grooves, मतलब ऐसा हम बनाते हैं सर, so that every point, everywhere we assume it to be the contact to be what? Point, 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 point. क्योंकि वहां पे हम actually we make it so rough that it is treated as point, point, point contact. Several multiple point contacts. That's why it is a higher pair. These three are higher pairs. So piston cylinder is a lower pair. Belt drive is a higher pair. Is it okay, sir? Is it okay? होगा? Okay? Yes. रैपिंग में ही हम हाइयर ले लेते हैं सर, क्योंकि यू नो रैपिंग पेयर कोई सेपरेट नहीं, इसमें ही हाइयर पेयर ले लेते हैं. बिकॉज पॉइंट मल्टीपल पॉइंट्स होंगे, मल्टीपल पॉइंट कॉन्टेक्ट्स होंगे. समझ गए? सो जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं तो रैपिंग पेयर का कोई अलग होता है? नो.
लोअर पेयर्स हायर पेयर्स का होता है, इट कम्स अंडर हायर पेयर्स. होप यू अंडरस्टूड सर. गॉट इट राइट. हाँ ये देखो ना, प्लीज लुक एट दिस, ध्यान से सुनो. ठीक है. नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ, ये इधर देखो, द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन बाय 3 into n minus 1 minus 2 jb minus h. बता सकते हैं आप व्हाट इज दिस? डू यू नो दिस इक्वेशन सर? डू यू नो दिस इक्वेशन सर? वेट. डू यू नो दिस इक्वेशन सर? बहुत सारे क्वेश्चंस है सर. हाँ. n is number of links, n is number of links, and jb is binary joints, and h is number of higher pairs, number of binary joints. So number of higher pairs. ठीक है सर. हायर पेयर्स. आर देयर एनी हायर पेयर्स हियर? देखो एक बार, आर देयर एनी हायर पेयर्स? आपको तो कोई नहीं लग रहा है सर. देयरफॉर इन दिस केस इट इज जीरो, इस केस में जीरो है. सो हाउ मेनी लिंक्स आर देयर? फर्स्ट आइडेंटिफाई करो. पहले आप फिक्स्ड ले लेना. डोंट टेक फिक्स्ड, यहां पे फिक्स्ड है, यहां पे डबल डबल मत लेना. नो. ये पूरा देखो. डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन दिस लिंक एंड दिस लिंक? देखो ध्यान से सुनो. प्लीज लुक एट, दिस इज अ सिंगल लिंक. ये पूरा एक ही लिंक है सर, ये पूरा एक ही लिंक है. सो बिकॉज लिंक का मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन. दिस इज अ सेपरेट लिंक, दिस इज अ सेपरेट लिंक. तो जब भी ऐसा देता है, ये पूरा एक ही लिंक है सर. दिस इज कंप्लीट सिंगल लिंक. सो ये भी कंप्लीट एक लिंक है सर. समझ में आ रहा है ना? दिस इज अ सिंगल लिंक. ये पूरा एक ही लिंक है सर. ये समझ में आ रहा है सर? दिस इज ऑल सिंगल लिंक सर. दिस इज ऑल सिंगल लिंक. ओके. अब देखो, लेट अस कैलकुलेट. फिक्स्ड इज 1, ये 2 हो गया सर, और ये पूरा 3 है सर, और ये कंप्लीट 4 है सर, और ये 5 है सर. यस, ये 5. ये क्या है सर? दिस इज 6 एंड दिस इज 7. करेक्ट. गलत हुआ सर. एंड दिस इज 8 एंड दिस इज, हाँ क्या हुआ, एक सेकंड, समवेयर वी हैव कमिटेड मिस्टेक. हाँ जी, भूल गए, एक भूल गए सर. क्या आप बता सकते? यहाँ पे पिस्टन इज स्लाइडिंग, तो बात, चलो कोई बात नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर. वी मे टेंड टू फॉरगेट, शायद हम भूल जाते हैं. ये नहीं होना चाहिए. इधर देखो, दिस फिक्स्ड इज 1, दिस लिंक इज 2, दिस पिस्टन है, यहाँ पे पिस्टन इज स्लाइडिंग, इट इज 3, एंड दिस लिंक इज 4. ये हो गया, ये हो गया, एंड ये हो गया, ये हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 5 है, और ये 6 है, ये 5, ये 6 है, ये 7 है, और ये 8 है. ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 एंड 10. इज इट करेक्ट सर? हाउ मेनी लिंक्स आर देयर सर? एनीवन? हाउ मेनी आर देयर? कुछ तो बोलो रे. अरे आई एम नॉट गेटिंग एनी कमेंट्स फ्रॉम योर साइड. 10 लिंक्स, बिल्कुल सही है सर. 10 लिंक्स. हाउ मेनी बाइनरी जॉइंट्स आर देयर? एक बार देखना बाइनरी. यहां पे कलर दूसरा ले लेंगे सर. विल टेक अ सेपरेट कलर. ओके. दिस इज वन जॉइंट. ये देखो, देर इज अ स्लाइडिंग पेयर हियर. दिस इज अनदर जॉइंट. सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th. और कुछ है सर? और कुछ है? ये एक भूल गए सर, बताओ. वी फॉरगॉट वन. देखो, वी आर फॉरगेटिंग. अभी देखो यहां पे, प्लीज लुक एट केयरफुली. सो इफ यू अंडरस्टैंड, यहां पे ये स्लाइड कर रहा है, ये एक स्लाइडिंग है. यहां पे एक पिन है सर, यहां पे देखो, हियर देयर इज अ पिन. तो पिन का एक है, ये स्लाइडिंग का एक है, यहां पे दो है. ये सर, नो सर, नहीं आया समझ में? नहीं आया. देखो रे, टर्निंग पेयर. देर इज अ, विद दिस लिंक टर्निंग पेयर. दो टर्निंग, तीन टर्निंग, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 turning pairs and one sliding pair. Sliding pairs is also, pair is also lower pair. तो टोटल कितने हो गए सर? 13. करेक्ट ना? इज इट 13? देखो, एक, ये स्लाइडिंग 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So therefore the number of binary joints are 13. Correct. So put in this case. So 3 into 10 minus 1 minus 2 times j
नो हायर पेस, तो कितना आ रहा है सर? 9 3 27 minus 26, तो 1. याद रखना सर, इट इज अ मैकेनिज्म विद अ सिंगल. व्हाई इज इट नोन एज मैकेनिज्म? बिकॉज वन ऑफ द लिंक्स इज फिक्स्ड. याद रखना सर. ये कहां पे यूज करते हैं सर? वेरी सिंपल सर. इफ आई गिव इनपुट हियर, ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको स्लाइड कर रहा हूं ऐसा, तो डेफिनेटली देयर विल बी वन आउटपुट. व्हाट डज सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट? एनीवन? सिंगल बिटवीन 2 4 जॉइंट है क्या? बिटवीन 2 एंड 4 कहां गया? 2 एंड 4 है ना रे यहाँ पे? या देखो ये जॉइंट है ना रे, इधर देखो, एक सेकंड. आई विल शो यू, आई विल शो यू, आई विल शो यू. यस, है. ठीक है. देयर इज अ जॉइंट. ओके, गॉट इट राइट. तो इसका क्या है ना, मैं बताता हूं सर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम? बता सकते सर? वन इनपुट वन स्पेसिफिक आउटपुट. एक इनपुट से एक आउटपुट, या फिर वन पैरामीटर इज इनफ टू स्पेसिफाई द मोशन ऑफ द एंटायर मैकेनिज्म. इज इट ओके सर? हाँ. क्लियर? क्लियर सर? ग्रेट. अब आइए, इधर आइए. अब देखो, हाउ मेनी, ही इज आस्किंग 5 revolute pairs. This is one revolute pair, second, third, fourth, fifth. How many joints are there? All these are binary. What does binary joint mean? एक joint पे दो links जब है binary. Suppose एक joint पे, for example, at this joint there are, it is a ternary link. How many links are there? 3. So it is equivalent to how many binary links? देखो, ये दोनों मिलाकर एक joint होगा binary, ये दोनों मिलाकर एक joint होगा. तो one student said, sir ये देखो, एक second, 1 2 3. Sir, is it equivalent to how many binary joint? Can I call it as a ternary joint, sir? क्या मैं इसको ternary joint बोल सकता हूँ सर? Yes. अब देखो, my question to you people is, how many parameters are required to specify it completely? For example, let's say this is 30 degree and say this is 20 degree. मेरे प्यारे दोस्तों, one between 1 and 2 the angle is 30, between 2 and 3 the angle is 20. Is it necessary for me to specify the third angle, that is 1 and 3 is 50 degree? nahi. Automatically if two are there, if A is the brother of B, B is the brother of C, automatically AC, मतलब दो enough है. So यहाँ पे therefore ternary joint is equal to two binary joints, because मतलब दो specify चाहिए. समझ में आ रहा है सब? Therefore third one is not required. So if a joint has n number of links, then it is equivalent to n minus 1 binary joints. Is it clear sir? Clear sirs? बोलो sirs. अरे no one is giving answer. If it is clear, I'll proceed sir. अगर आप हाँ बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा सर. Yes, very good. अब यहाँ इसका फाइंड आउट करो सर. लेट्स फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस. कैसे? 3 into n minus 1 minus 2j. No higher pace. यहाँ पे ये कार्ड उल्टा का. So how many links are there? Fixed link is 1, 2, 3. देखो, fixed link 1, link 2, link 3, link 4, link 5. 3 into 5 minus 1. How many binary joints are there? 1, 2, 3, 4, 5. देखो, 3 4 3 is 12 minus 10, it is 2. Anyone? What is the physical answer? Is 2. What is the meaning of this sir? आप बताइए, what is the meaning of this? It means two inputs are required to get one specific output. So with single input you cannot get a specific single output. So दो inputs are required to get a specific output. तो जब भी degree of freedom बढ़ते जाएगा तो आपको parameters required will be more, things will become difficult. समझ में आ रहा है सर? So generally we are fascinated towards single degree of freedom because one input one output. Is it okay? Yes. चलो फटाफट देख लेंगे. हाँ ये देखो, a circular disc of radius r, this is radius r, it rolls without slipping. What does rolling without slip mean? It means pure rolling. Sir, initially some questions are from previous ISRO examination, उसके बाद अलग questions है sir. Initially some questions around 10 15 10 to 14 questions are previous ISRO, उसके बाद नए questions. Is it okay? हाँ, pure rolling. So for pure rolling, what will be velocity sir? R omega. ध्यान से सुनो सर.
दिस इज रोलिंग लाइक दिस, इट इज रोलिंग लाइक दिस। देखो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे विच इज एट 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30, ही इज आस्किंग वेलोसिटी एट पॉइंट p। कैसे करेंगे सर? एज इट इज रोलिंग द सेंटर ऑफ मास हैज अ वेलोसिटी v, तो व्हेनेवर द सेंटर ऑफ मास हैज अ वेलोसिटी v, एवरी पॉइंट हैज अ वेलोसिटी v। तो इस पॉइंट पे मैं कलर चेंज करता हूं सर, आई विल चेंज द कलर। दिस हैज अ वेलोसिटी, this has a velocity v, ठीक है। this has a velocity v। now as it is rolling, दूसरा वेलोसिटी कैसा होगा सर? सो ये वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी, इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, एंड यू नो दैट इज आर ओमेगा। बट यहां पे v r omega is also, this velocity is r omega, but r omega is also in this case is equal to v। बहुत बढ़िया सर। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते व्हाट इज दिस एंगल सर? एनीवन, व्हाट इज दिस एंगल? ध्यान से सुनो, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है, बहुत बढ़िया, और ये हॉरिजॉन्टल है सर। तो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर तो ये कितना होना चाहिए सर? अरे आप ही तो बताओ सर। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं आराम से बताऊंगा। इधर देखो 60 होता है सर। कैसा 60 होता है? तो ये एंगल विल बी 30, करेक्ट ना? बोलो रे। बोलो सर। इसका परपेंडिकुलर, चलो आपको नहीं आया तो मैं ऐसे बताऊंगा सर, हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है। सो इसका परपेंडिकुलर ये है, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है, तो हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर ये है, तो ये एंगल विल बी 30। अगर ये 30 है तो ये 60 होना चाहिए सर। इज इट करेक्ट सर? अरे यार, व्हाट इज हैपनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, एंगल भी नहीं आ रहा। चलो चलो चलो, नहीं आ रहा है तो लीव इट। सम, देयर आर सम वीक स्टूडेंट्स, उनका भी केयर ले लेंगे सर। देखो मैं बोल रहा हूं सर, इधर देखो, ये होगा वेलोसिटी आर ओमेगा, ठीक है सर। दिस इज परपेंडिकुलर, हाँ जी सर। दिस विल बी 30, ऑलरेडी गिवन ये 30 है, ठीक है सर। तो ये कितना होगा सर? ये कितना होगा सर? सम ऑफ द एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180, तो ये 60 होगा सर। 60 प्लस 30, बिल्कुल सर। अगर ये 60 होगा तो ये 60 होगा, तो ये कितना होगा सर? अपोजिट एंगल्स, अरे ये लाइन ऐसा है, ये ऐसा है। इफ दिस एंगल इज 60, व्हाट विल बी दिस एंगल 60? तो ये दिस वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल 60, वेरी गुड। और एक वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, ये तो क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी, बिकॉज इट इज रोटेटिंग, सो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, बट इट इज ट्रांसलेटिंग आल्सो। तो दिस ट्रांसलेटिंग वेलोसिटी इज गिवन एज v। तो मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट की वेलोसिटी सर। एक्चुअली ये जो वेलोसिटी है ना, यहां पे शो करना है। सो लेट मी शो यू हियर। अब शायद समझ में आया होगा आपको। बहुत बढ़िया सर, अब शायद समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया सर, इधर देखो। नो, दिस हैज, दिस इज माय v, and already it has a linear velocity of v, so and this angle is 60। अब देखो, he is asking net velocity कितना होगा सर? बहुत सिंपल है सर। लेट मी रिजॉल्व दिस इनटू टू कंपोनेंट्स। तो ये तो हॉरिजॉन्टल है, इसका कोई टेंशन नहीं है इसका। सो लेट अस रिजॉल्व दिस इनटू टू कंपोनेंट्स। इधर देखो, दिस इज वेलोसिटी v एंड दिस इज 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका अपोजिट, इट विल बी v sin 60, और ये एडजेसेंट होगा v cos 60। वेरी गुड सर। एक v है, समझ में आ रहा है सर? एक v, ये तो ऑलरेडी v है, ये ऑलरेडी v है। नाउ आई एम स्प्लिटिंग दिस इनटू टू कंपोनेंट्स, सो दिस इज v cos 60। तो कैन आई राइट v cos 60 एज v by 2? यस सर। सो और एक वर्टिकल है, ये वर्टिकल कितना है सर? v sin 60, इट इज रूट 3v by 2, रूट 3/2। अब ये रिजल्टेंट क्या होगा सर? v प्लस v by 2 कितना होगा सर? 3v by 2। सो देर इज अ rightward velocity of, there is a rightward velocity of 3v by 2 and the downward velocity of root 3v by 2। करेक्ट सर, करेक्ट सर। सो इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करो, क्या होगा सर? दैट विल बी द वेलोसिटी एट पॉइंट p। सो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 3v by 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3v by 2 का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी 9v स्क्वायर प्लस 3, 12v स्क्वायर by 4। करेक्ट सर, 2 स्क्वायर इज 4, तो 4 1s 4 3s, so therefore root 3v is the right answer। क्या ये समझ में आया सर आपको? अरे यार, नो वन इज गिविंग आंसर।
what will be the velocity here, sir? Anyone? For pure rolling. Why 0? Because when it is rotating in this direction, the tangential velocity is v is r omega, but already the center of mass has rightward velocity, ye hoga. So when both are same, it will be 0. So this is also nothing but your instantaneous center. So instantaneous center, something like as if at that instant this body is about rotating about this point, this point. So can you tell me what will be the velocity here, sir? यहाँ पे velocity कितना होगा, sir? Anyone? What will be the velocity here? So this velocity, when it is rotating like this will be v, which is r omega. Already center of mass velocity v है, तो already there is center of mass v. तो कितना होगा सर ये? v is r omega. So this is 2v or 2r omega. So what will be the velocity at the center, sir? v center में tangential velocity कुछ होता है सर? नहीं. v is equal to r omega. r is 0 at the center, so there will be only this velocity v. तो यहाँ पे v है, यहाँ पे 2v है, 2v है और यहाँ पे 0. सो इफ यू आर ट्राइंग टू प्लॉट द वेलोसिटी, देखो सर एक सेकंड, हु नोस कल एग्जाम में यही आ सकता, यहाँ का वेलोसिटी 0. दिस विल बी योर 2v which is also equal to 2r omega, and this velocity is v which is r omega, and this is 0, as if this completely is rotating about this. Is it clear, sir? Say something. बोलो. यस, नेक्स्ट, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम सर. हाँ ये करो, फटाफट करो. फिक्स्ड लिंक इज वन. ओ हो, गड़बड़ कर दिया सर. हम इसको निकाल देंगे. ये हाँ, अब देखो, देखो, दिस फिक्स्ड लिंक इज वन, दिस इज टू, दिस इज थर्ड लिंक. भूल जा रहा है, there is a piston also, fourth link, and this is fifth link, this is sixth link. Is it correct, sir? Is the number of links correct? Is the number of links correct? देखो एक बार, fixed link is 1, 2, 3, piston is 4, ये 5, ये 6. Number of links are 6. Are there any higher pairs, sir? इसमें कोई higher pairs नहीं है, binary joints. देखो कलर चेंज करेंगे सर, विल चेंज द कलर. 1, 2, हाँ, इट इज स्लाइडिंग, तो यहां पे एक है. और what type of joint is this, sir? ये पिस्टन तो स्लाइड हो रहा है, there is a sliding pair, एक स्लाइडिंग पेयर है, but what type of joint is there? यहाँ पे link 3, link 4, link 3, link 4 and link 5 are connected. So what type of joint is this, sir? It is a ternary joint. Ternary joint is equal to how many binary joints? So ternary joint is equal to 2 binary joints. ये स्लाइडिंग का एक जॉइंट है, टर्नरी इज 2 बाइनरी. यहाँ पे एक है सर, यहाँ पे एक है सर. करेक्ट. नाउ देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Am I right, sir? Am I right, sir? Is it 7? Is 7 correct? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. पुट करो. 3 into n minus 1 minus 2j. J is 7. No higher pairs. This is 15 minus 14 and that is equal to 1. Is it correct, sir? Is the degree of freedom 1 correct, sir? गलत है? Very good, sir. Very good. चलो आगे बढ़ते हैं सर. ये करो. Come on, come on. Come on, let's not waste time, sir. आज बहुत कंप्लीट कर लेंगे. ये कंप्लीट फिक्स्ड लिंक है सर. दिस इज कंप्लीट फिक्स्ड लिंक. This is complete fixed link. This is link 2 and this is link 3. So number of links are 3. एक बार joints देख लेंगे. यहाँ पे turning pair है सर. कलर चेंज करेंगे. We'll change the color. There is a turning pair. There is a turning pair. What about this, sir? What about this? So binary joints are 2. ये कौन सा पेयर है सर? यहाँ पे हाइयर पेयर है, कैम है. So therefore
it is a point contact, so therefore it is 1. Higher pair 1 है, एक higher pair है sir, एक higher pair. So 3 into n minus 1 minus 2j minus h. देखो 3 into n minus 1, 3 into n minus 1 minus 2j minus h. तो is it correct sir? ये हो गया 6 ना, minus 4 minus 1. Is it correct sir? गलत है सर? Is it correct? अरे यार आज सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही आ रहे हैं. खुश हो के नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मींस खुश रहना चाहिए, बिकॉज 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट, क्योंकि कैम्स में एक इनपुट एक आउटपुट जरूरी है सर. मैं I'll ask you one question. एक सेकंड. अगर ऐसा कुछ है, ध्यान से सुनो सर, ये रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है सर. ये व्हाट इज रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम? Without moving input output links, if you can rotate the intermediate link, there is a redundant degree of freedom. समझ में आया सर? Redundant, यहाँ पे एक फर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम है सर. समझ गए ना? we are rotating it. ठीक है सर, कोई बात नहीं. ये देखो, हाँ ये थोड़ा मैं, बिकॉज इसको मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट मान रहा हूं सर, क्योंकि ये रेगुलरली दिस क्वेश्चन हैज कम इन इसरो. हाँ चलो, मैं इसका डिटेल्ड वे में जाऊंगा सर. एक सेकंड. लेट्स मी नहीं नहीं नहीं, बिफोर दैट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली. मान लो यहां पे एक पिस्टन है सर, ये पूरा गाइड वे है सर. ओके, ठीक है सर. लेट एल बी द लेंथ ऑफ दिस लिंक, लेट आर बी द लेंथ ऑफ दिस लिंक. ठीक है सर. नाउ आफ्टर सम टाइम यहां से मेजर करेंगे सर. दिस इज द सेंटर, मान लो ये सेंटर है, यहां से मेजर कर रहे हैं हम. ठीक है सर. लेट मी मेजर ऑल एक्स वैल्यूज फ्रॉम हियर. लेट मी मेजर ऑल एक्स वैल्यूज. अब देखो, थोड़ी देर के बाद मुझे बताओ सर, इस पोजीशन में व्हाट इज दिस टोट. देखो, लेट मी राइट दिस एज ओ. ओ, दिस इज द क्रैंक विच इज रोटेटिंग. अब देखो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ध्यान से सुनो. सो लेट इट स्टार्ट रोटेटिंग लाइक दिस. आफ्टर, अरे इसको थोड़ा कम कर देंगे सर, लेंथ जगह नहीं है ना. ओके, तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी. सर यू शुड बी इन ए पोजिशन टू डेवलप. देखो, ये स्केच है सर, डोंट एक्सपेक्ट, बिकॉज दीज आर रिजिड लिंक्स. रिजिड लिंक्स देर इज नो चेंज इन लेंथ. तो लेकिन दिख रहा है यहाँ पे इस पर थोड़ा अलग अलग है, बट एनीवे यू एडजस्ट. ठीक है सर. नाउ आफ्टर दिस इज, लुक एट, मैं कलर चेंज करता हूं सर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. दिस इज द ओरिजिनल पोजिशन. ये ओरिजिनल पोजीशन है सर, ये ओरिजिनल पोजीशन है. सो इन ओरिजिनल पोजीशन द पिस्टन इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट. ठीक है सर जी. नाउ आफ्टर सम टाइम इट रोटेटेड, मतलब ये रोटेट हो रहा है, तो ये दिस पिस्टन इज स्लाइडिंग, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट विल बी दिस लेंथ सर. आर द लिंक लेंथ चेंजिंग? ये ऑलरेडी इसका लेंथ एल है, तो ये कितना होना चाहिए सर? एल. ऑलरेडी दिस रेडियस इज आर, सो दिस विल बी आर. Let us assume that this angle is theta. The crank is making an angle theta with the inner dead center, ये है, and let this angle be phi. Now, how much distance the piston has moved? You should be in a position to calculate the piston velocity. मैं पूरा theory दे रहा हूं sir. Now I'll give you theory. So let us assume that it has moved through a distance of x. x डिस्टेंस मूव हुआ सर, बहुत बढ़िया.
let it move from x, यहाँ पे x is 0 and ऐसा the piston is reciprocating, ठीक है सर. Now my dear students, can I calculate this length? कलर चेंज करेंगे सर. Can I calculate this length सर? देखो देखो एक सेकंड, देखो ये अपोजिट है तो साइन, ये एडजेसेंट, दिस इज L cos फाई, ठीक है, और ये अपोजिट है तो साइन, एंड दिस इज R, ये साइन cos थीटा. बिल्कुल करेक्ट है सर. नाउ व्हाट विल बी दिस टोटल लेंथ? क्या आप बता सकते हैं व्हाट विल बी दिस टोटल लेंथ सर? ये बताओ दिस टोटल लेंथ. L cos फाई plus R cos theta is this total length. Correct sir? देखो this is L cos phi, this is R cos theta. Correct? बिल्कुल करेक्ट सर. तो can I find out this length? This length is equal to L plus R. This total is L plus R minus this length. So therefore x will be equal to, बोलो सर, L plus R minus L cos phi plus R cos थीटा. Am I right sir? देखो एक बार, ये वाला लेंथ कितना है सर? दिस लेंथ इज, अरे यार ये लेंथ, ये वाला लेंथ, दिस लेंथ ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट है. दिस इज L cos थीटा, cos phi, L cos phi. दिस इज R, ये साइन है तो R cos थीटा, ठीक है. सो दिस टोटल L plus R में से L cos phi प्लस R cos थीटा निकाल दिए. तो कैन आई राइट दिस x एज L इंटू 1 माइनस cos phi. ध्यान से सुनो, L को कॉमन ले लेना, प्लस R इंटू R को कॉमन ले लेना, 1 माइनस cos थीटा लिख सकते सर. कैन आई राइट माय डियर स्टूडेंट्स? यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग. किसी के कमेंट्स नहीं आ रहे सर. अरे आई एम नॉट फाइंडिंग एनी कमेंट्स. इज इट क्लियर? आई एम गिविंग यू थ्योरी सर, डायरेक्टली आंसर नहीं दे रहा हूं. क्लियर? यस यस. अब देखिए आराम से, टेंशन नहीं लेने का. नाउ और एक बात है सर, दिस लेंथ, whether I calculate from this triangle or this triangle should be same now. Can I write this length as, देखो, sin phi is equal to sin theta is opposite. इसको हम क्या ले लेंगे सर? कुछ सम k ले लेंगे. दिस वर्टिकल लेंथ को k ले लेंगे, k by l. करेक्ट, k by l बिल्कुल सही है सर, 100% सही है. तो k विल बी इक्वल टू L sin phi. एंड ये वाला ट्राइंगल लीजिए सर, व्हाट विल बी sin थीटा? sin थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ इज k बाय हाइपोटेन्यूज इज r. तो k इज इक्वल टू r sin थीटा. यहां से k मिला, यहां से k मिला, तो कैन आई राइट L sin phi is equal to R sin theta? Excellent sir. There is one parameter known as obliquity ratio. L by R is known as obliquity ratio and generally it is greater than 1. Greater than 1. ठीक है sir. And therefore can we write this as L by R is n? देखो एक बार, तो sin phi is equal to L by R इधर ले लेना n, L by R n ले लेना, is sin theta. Very good sir. और sin phi is equal to sin theta by n. This is also correct. So मेरे प्यारे बच्चों देखो एक बार, cos phi can be written as root of 1 minus sin square phi. लिख सकता हूं सर, because sin square theta plus cos square theta is 100% sir. Therefore cos phi is equal to root of 1 minus sin square phi. What is sin square phi sir? It will be sin square theta by n square. By n square. So this can be written as cos phi will be equal to ये root of n square minus sin square, root n square, ये पूरा root है सर, तो root से n square गया, तो 1 by n root of n square minus sin square. Absolutely correct. So everything I brought in terms of theta, because generally the crank speed will be given, d theta by dt is crank speed. ठीक है सर. Now let us put it here. तो मुझे जगह चाहिए ना सर, एक सेकेंड. x is equal to, don't by heart anything, लास्ट में कुछ इक्वेशन देता उसी को याद रख लेना. सो 1 माइनस
कॉस फाइव, ठीक है सर, एल इंटू 1 - cos 5 प्लस आर इंटू 1 - क्या है सर, आर इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। And you also know x is equal to L into 1 - cos 5. What is cos 5? What is cos 5? 1 by n root of, देखो cos 5 is 1 by n root of n square minus, क्या है सर, root of n square minus sin square theta. Don't worry, finally I'll give you one equation. ठीक है सर, प्लस r into 1 - cos theta. मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक समझ में आया सर सभी को? इज इट क्लियर? एक्सप्लेन लास्ट आंसर, क्या आंसर है पता नहीं क्या बोल रहा है ये। हाँ देखो, यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, जनरली n स्क्वायर इज वेरी मच ग्रेटर देन sin स्क्वायर थीटा। द रीजन बीइंग, sin थीटा का वैल्यू क्या होता है सर, जनरली इट इज बिटवीन 0 to 1, तो 0.5 0.3 ऐसा कुछ होता। द स्क्वायर ऑफ दैट क्वांटिटी इज मच मोर स्मॉल, एल का वैल्यू बहुत ही ज्यादा होता है। सो अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा सर, x इज इक्वल टू एल इंटू 1 - 1 by n। तो विथ रेस्पेक्ट टू साइन थीटा के रेस्पेक्ट में देखो, एन स्क्वायर के रेस्पेक्ट से साइन थीटा को नेग्लेक्ट किए तो क्या बचेगा सर, एन स्क्वायर के रेस्पेक्ट से साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो क्या होगा सर, एन स्क्वायर। ठीक है, प्लस आर इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है सर जी, तो आई थिंक रूट एन स्क्वायर इज एन, एन बाई एन इज 1, 1 - 1 0, तो लास्ट इक्वेशन यही बचा है सर, बस दैट्स इट। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, दिस इज द पोजीशन ऑफ पिस्टन व्हेन द एंगल ऑफ क्रैंक इज थीटा। इज इट क्लियर सर? ये याद रख लेना सर, जस्ट यू रिमेंबर दिस, द पोजीशन ऑफ द पिस्टन इज गिवन बाय the crank length into 1 - cos theta, where theta is the angle made by, देखो एक बार, where theta is the angle made by this crank with this line of stroke। ठीक है, पूछा क्या है सर, देखो एक बार, velocity of the piston पूछा है सर, देखो एक बार, x is equal to r into 1 - cos theta, this is the equation। ठीक है सर, and I request everyone to remember this, remember this, remember this, याद रहेगा सर, बिल्कुल याद रहना चाहिए। मुझे पिस्टन का पोजीशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द पोजीशन, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होगा, वेलोसिटी। तो देखो, लेट अस डिफरेंशिएट दिस, x डॉट इज इक्वल टू dx by dt, and r is constant because link length is not changing, so it is a rigid link। okay, differentiation of 1 is 0, and cos theta का differentiation क्या होता है सर, minus sin theta। again now you because theta is changing continuously with time, देखो ये crank जब rotate हो रहा है उसका position angle is changing continuously, so what is the differentiation of theta, d theta by dt। excellent sir, क्या आप d theta by dt क्या है बता सकते सर, it is the change of angle of the crank with time, that is the angular velocity of the crank का angular velocity। very good, so the velocity, this x dot is nothing but velocity of the piston, so this x dot is velocity of piston, minus of minus is plus, so therefore ये r into sin theta, and you know what is d theta by dt, omega। so please याद रख लेना, piston velocity is equal to r omega sin theta। ये दो आ गए सर। अब पूछा क्या है सर, बहुत सिंपल, देखो when it is at 0.1 from the center, मतलब जब x का वैल्यू 0.5 दिया, 0.5 ना, कहां गया, यस, और एक दिया सर, and you know the relationship between L and, do you know this equation sir, the stroke length is equal to कुछ है, L is equal to 2r, याद है आपको? नहीं, बोलो सर, कुछ तो बोलो। स्ट्रोक इज 2 दिया है सर, L इज इक्वल टू द स्ट्रोक लेंथ। देखो मैं एक बात बताता हूं सर, देखो सर, जनरली व्हेन n is not n is greater than 1, the stroke length is 2r। ये कनेक्टिंग रॉड के लेंथ से लिंक मत करना, ये स्ट्रोक लेंथ है। व्हाट इज द स्ट्रोक लेंथ गिवन सर? और एक बात है सर, कैन स्ट्रोक लेंथ बी 4r? क्या स्ट्रोक लेंथ कभी 4r हो सकता है सर? बोलो, किस केस में स्ट्रोक लेंथ 4r होता है? when L is equal to R, yes, when L is equal to R, connecting rod length, when N is equal to 1, L is equal to 4R होता है सर। ये स्पेशल केस मैं क्लास में डिराइव करके बताया था सर। एक्सलेंट सर,
पूछ सकते सर व्हेन n इज 1 द स्ट्रोक, कभी भी रटो मत सर, stroke length L is equal to 2R when n is greater than 1. When n is, देखो, n is equal to connecting rod length by crank length. When this is greater than 1, the stroke length is 2R. देखो, जब n is equal to 1, that is L by R is equal to 1, मतलब L is equal to R, इस केस में stroke length होता है 4R. ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट आई हैव शोन यू द वीडियो ऑल्सो, मैं डिराइव करके बताया था. क्या हो रहा राजू, क्या हो रहा है सर, कांट गेट इट, राजू का प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है सर मुझे, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये छोड़ दो सर, दिस आई हैव डिराइव्ड इन क्लास, ये एक्चुअली मैं डिराइव करके बताया था, इसको छोड़ दो, जो लोग क्लास अटेंड नहीं की ये समझ में नहीं आएगा. Otherwise L is 2R, ये तो at least you know the stroke length is when n is greater than 1, L is 2R, at least you know this राजू. बोलो सर. अरे आप कोई, अरे यार, ओके अब देखो, L is 2 into R, what is the radius sir, 1 meter, ठीक है सर. He, and देखो, the crank is rotating at 120 rpm, he is asking velocity of the piston. The problem here is, देखो देखो, एक सेकंड, the radius is given as 1 meter. He is asking the piston velocity when x is 0.5 meter and the speed of the crank is given as 120 rpm. और कुछ दिया है सर, और कुछ दिया है सर. The crank is rotating at 120 rpm and the stroke is stroke length. Do not get confused between connecting rod length and stroke length. Stroke length is this piston movement. ठीक है सर. अब देखो, can I write omega is equal to 2 pi n by 60 radian per second? Yes. So 2 pi, what is n sir? 120 by 60. तो can I write omega as, कितना होगा सर ये 2 pi n a, कितना होगा सर ये? Is it 4 pi? Now the problem is the piston velocity is omega r sin theta. देखो एक बार, the piston velocity is omega r sin theta and x is equal to r into 1 minus cos theta. ध्यान से सुनिएगा सर, इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, in order to calculate the velocity of piston, omega is already known, r is already known, the only unknown is sin theta. How to find out theta? Anyone, how to find out theta? अरे ये दिया ना रे, x is 0.5, r is 1 into 1 minus cos theta. So 0.5 is equal to 1 minus cos theta, or cos theta is equal to 1 minus 0.5, or cos theta is equal to 0.5. Excellent sir. When cos theta is 0.5, look at what will be sin theta sir. एक सेकेंड, अगर ये थीटा है, ठीक है, cos theta is 1 by 2. Can I write this as 1 by 2? cos theta is 1 by 2. तो ये कितना होगा सर? Is it root 3 सर? गलत है क्या? एक सेकेंड, let it be x. तो x square plus 1 is equal to 4. root 3 ना? Is it root 3? Is it root 3 सर? सही है? सही है गलत है सर? यहां से cos theta is half, बिल्कुल सही है सर. cos थीटा हाफ का मतलब थीटा इज 60. क्या प्रॉब्लम है सर? थीटा इज 60, तो व्हेन थीटा इज 60, sin 60, देखो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन ओमेगा इज 4 पाई, रेडियस इज 1 एंड sin थीटा, व्हाट इज sin थीटा सर? sin थीटा sin 60 रूट 3 by 2. तो ये कितना आ रहा है सर? द पिस्टन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 1 2, इट विल बी 2 रूट 3 पाई आ रहा है सर. 2 रूट 3 पाई है ऑप्शन में. यस, 2 रूट 3 पाई. Why I have derived this is now finally you have to remember two things. याद रखना मेरे प्यारे बच्चों. Fine. See, is the analysis clear? Is the analysis clear? नहीं, आप रटो मत सर, don't by heart. तो क्या क्या याद रखना है सर? Finally, the position is given by r into 1 minus cos theta. You remember this. And the piston velocity
which is nothing but x dot is equal to omega r sin theta. That's it. ये याद रख लेना. Where omega is angular velocity of crank. Actually, when I have done the analysis, मैं सारे बता दिया था सर. What is the angular velocity of the connecting rod? All these, how to find out? अब देखो, same question पूछता है सर. So if the angular velocity of the crank is given, how to find out the angular velocity of the connecting rod? बताइए सर. My question is, if the angular velocity of the crank is given, how to find out the angular velocity of the connecting rod? बोलो सर. देखो देखो, एक सेकंड, इधर देखो सर. कहाँ गया रे वो? देखो, dt is the angular velocity of crank. What will be the angular velocity of the connecting rod? d phi by dt, because its angle, this phi is changing. So if you want omega of crank, पूछ सकता सर, it should be d phi by dt. How to get angular velocity theorem? क्या हो रहा सर? आपको क्या हो रहा है सर? You people have lost everything. इधर देखो, just now I gave you one equation. अभी अभी आपको एक इक्वेशन दिया, पता नहीं किसको याद है. देखो एक बार, L sin phi is equal to R sin theta. Because देखो, क्या स्टूडेंट्स है सर, बहुत मुश्किल है सर आपको पढ़ाना. This is phi, this is theta. This length from this triangle, L sin phi is this length, R sin theta is this length. देखो, now can I write this as a sin phi is equal to 1 by n sin theta? 100% सर, 100% लिख सकते हैं या नहीं? देखो देखो एक बार, sin phi is r by l. R by l can be written as 1 by n. Okay, differentiate करो. Sin theta, sin phi differentiation is cos phi. What is the differentiation of phi? d phi by dt, because it is changing with time. N is constant. Why n is constant? Because length of the connecting rod and these are rigid links, so r is constant. तो ये हो गया. What is sin theta differentiation? Cos theta. And theta का d theta by dt. Excellent sir. So मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते सर? This is the, मेरे प्यारे बच्चों, what is this sir? Connecting rod. Yes. And this is omega of crank. ठीक है सर. देखो, cos phi into omega of connecting rod लिखेंगे सर. CR is not crank, it is connecting rod. Okay, is equal to 1 by n cos theta into omega of crank को simply omega लिखेंगे. बहुत बढ़िया. Just now I gave you one equation for cos phi sir. अभी अभी मैं एक इक्वेशन दिया cos phi का. इधर देखो, पीछे तो देखो, cos phi का कुछ इक्वेशन दिया. What is cos phi? 1 by n root n square minus sin square theta. अरे यार, याद रखना सर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है सर. ठीक है, पुट करो यहाँ पे. Cos phi is 1 by n root of n square minus sin square theta. Omega of connecting rod is equal to 1 by n cos theta into omega. ठीक है सर. This is gone. अगर आपको चाहिए omega of connecting rod, it will be omega cos theta by root of n square minus sin square theta. Excellent sir. Generally this sin theta, sin square theta is very small compared to n square. तो you neglect sin square theta with respect to n square, तो क्या होगा जब neglect करेंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर. क्या पता कल यही क्वेश्चन आएगा. सो ओमेगा ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज, सॉरी, कनेक्टिंग रॉड इज ओमेगा cos थीटा बाय n स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को नेग्लेक्ट करो विद रिस्पेक्ट टू n स्क्वायर, तो रूट n स्क्वायर इज n. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है सर.
सो इस प्रॉब्लम में, इन दिस प्रॉब्लम what will be the omega of crank? बताओ सर. Already you know omega connecting rod is given. Omega connecting rod कितना है सर? 4 पाई ना. ओमेगा कनेक्टिंग रॉड 4 पाई कुछ आया ना. समवेयर वी हैव रिटन ना 4 पाई क्रैंक का. सो यहां पे कहां गया रे? ओमेगा कॉस थीटा बाई एन, ये वाला ओमेगा कॉस थीटा बाई एन. ओमेगा देखो, तो इस प्रॉब्लम में, इस पोजीशन में लेट अस कैलकुलेट. ध्यान से सुनो. व्हाट इज ओमेगा? 4 पाई रेडियन पर सेकंड. 4 पाई. कॉस थीटा इज हाफ. एंड व्हाट इज एन? एल नहीं दिया ना, एल नहीं दिया तो छोड़ दो ऐसे ही. सो एन विल बी गिवन. इस प्रॉब्लम में एन नहीं दिया. देखो, स्ट्रोक लेंथ से कनेक्टिंग रॉड लेंथ से लिंक मत करना. स्ट्रोक लेंथ इज डिफरेंट, कनेक्टिंग रॉड लेंथ इज डिफरेंट. तो एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर दिस. समझ में नहीं आया सर? हैव यू अंडरस्टूड सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत. सो नाउ आई राइट वेरी क्लियरली. सो इफ यू वांट द कनेक्टिंग रॉड एंगुलर वेलोसिटी, it will be angular velocity of crank into cos theta by n. Please remember this. Yes, याद रख लेना सर. याद रहेगा? बहुत बढ़िया सर. मस्त स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया. अच्छा लगा? आई एम नॉट जस्ट डूइंग क्वेश्चन सर. बोलो रे. ये करो. देखते हैं सर. हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव आंसर टू दिस? नवेद भाई. बाबा नाविद. बाबा नाविद की जय. स्पेरिकल पेयर. ओ माय. स्पेरिकल पेयर. क्या हो रहा सर? दिस इज नॉट अ स्पेरिकल पेयर सर. नो. स्पेरिकल पेयर इज नॉट अ हायर पेयर. इट इज अ लोअर पेयर. आपको गलत ये कॉन्सेप्ट में मत लेना सर. ये है सर. अब देखो, तो स्पेरिकल पेयर में यू कैन रोटेट अबाउट दिस. स्पेरिकल पेयर में, अरे यार ये क्या है? गूगल एड बोल रहा है, पता नहीं. हाँ देखो, अरे सबको रैपिंग ये बोलता है ये. हैपिंग पेयर बोलता है, हैपिंग. देखो, हैव यू सीन कार मिरर? मैं क्लास में कुछ किया था. एक बॉल लेके उसको कट करके एक टमाटर डाल के घुमा के दिखाया था व्हेन आई वाज टीचिंग इन क्लास. सो देखो ध्यान से. In case of spherical pair, all translational motions are arrested. Neither you can move in x direction, nor in y direction, nor in z direction. All translations are cut down. Only rotation. You can rotate about z axis, y axis. You can rotate about x axis, and you can rotate about z axis. So only 3 degrees of freedom are available. That is only theta x, theta y, and theta z. Only 3 are available. So no translation in x direction, no translation in z direction, no translation. Spherical pair में सिर्फ कभी आप कार के मिरर को आप ऐसा ऐसा किए सर? नहीं ना. सिर्फ आप यू कैन. समझ में आ रहा है सर सभी को? द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 3 3. बहुत बढ़िया. बढ़िया रे. इसका आंसर दीजिए रे. शोल्डर जॉइंट. यस. Basics not in depth. So what you are teaching will be enough to solve right PQs. Sir, actually I am from aerospace. This subject I have studied basics not in depth. Whatever you are teaching, will it be enough to solve? No, not enough, but I'm really sorry. Because whatever I'm teaching now, here I'm not teaching complete depth of theory.
So all those theory classes will be covered in plus classes, sir. तो यहाँ पे it is something like a practice session. Please do not expect all the details here. हाँ, if you have doubts, that those things will be discussed. ठीक है sir. It's a simple question, sir. Kuzbak equation is what? 3 into n minus 1 minus 2 times binary joint minus 1 into higher pair. तो कहां गया रे वो? Is it C? क्या ये C सही है? चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये वाला ले लो. वाह वाह भाई वाह, वाह भाई वाह. Which link is fixed? Is it a mechanism? Yes. 10th क्वेश्चन बी बोल रहा है कोई. देखते हैं सर. पता है सर क्या मस्त पढ़ाया था ये क्लास? Completely rotatable joints are mounted on the either side of the shortest link. बोला नहीं बोला सर? कुछ बोला था सर? Completely rotatable joints are mounted on either side of the shortest link. वो एक स्टेटमेंट लेके हम भाग गए थे सर. इधर देखो. The first thing is you should check whether it is okay. एक सेकंड सर, एक सेकंड. एक काम करते हैं सर, एक काम करते हैं सर. वेट, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो सर. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वेट. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वेट. Now you give the answer. I want answer to this question. This length is 4. देखो देखो. What is Grashof criterion? The shortest link plus longest link should be less than or equal to the sum of other two links. Other two links are intermediate links. Is it correct, sir? क्या ये सही है सर? बिल्कुल सही है सर. इस केस में देखेंगे which one is the shortest link? 3. So आप बताइए सर, if the Grashof criterion is satisfied, क्या मिलेगा आपको? My question to suno carefully. My question to you people is, if the Grashof criterion is satisfied, क्या मिलेगा सर आपको? When this criterion is satisfied, at least you have one crank. मतलब at least one link rotates completely. At least one link rotates completely. तो ये है तो. Otherwise, if this is not satisfied, if this is the situation, no link will rotate completely. No link will rotate completely. This is known as non-Grashof criterion. ठीक है सर. Shortest देखो, shortest कितना है सर? 3. देखो यहाँ पे shortest is 3, longest is 7, and P and Q are other links. P is 4 और 5, जो भी है. इसको P ले तो इसको Q लेना, इसको Q ले तो इसको P ले लेना. So अब देखो, what is S plus L? 10. What is this? 9. Oh my God. S plus L 10 is greater than S plus L is greater than P plus Q. Yes. So S plus L is greater than P plus Q means it is not satisfying Grashof. If it is not satisfying Grashof, you will get triple rocker. मतलब कोई भी rotate नहीं होगा सर, सब rock करते जाएंगे. None of the links will rotate. समझ में आ रहा है सर? Please don't by heart. तो पहले आपको you should check whether the Grashof criterion is satisfied or not. अगर ये क्वेश्चन आता है, आंसर विल बी ट्रिपल रॉकर, ट्रिपल रॉकर, ट्रिपल रॉकर. लेकिन सवाल यहां पे ये है सर. अब बताओ सर. नाउ यू टेल मी. द शॉर्टेस्ट लिंक इज 3 and the longest link is 7. P is equal to 6 and Q is equal to 5. ठीक है सर. This is the shortest link. This is the
longest link. This is P and this is Q, or this can be P, this can be Q. Any P Q interchange होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है सर. What is S plus L? It is 3 plus 7, which is 10. What is P plus Q, sir? It is 6 plus 5, it is 11. Can I say S plus L is less than P plus Q? Yes, sir. 10 is less than 11. So is the Grashof criterion satisfied, sir? Is the Grashof criterion satisfied? Yes, sir. जब Grashof criterion satisfied, लिंक देखो, ये शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट के बगल में जो है, दे आर कंप्लीटली रोटेटेबल, दे आर कंप्लीटली रोटेटेबल. तो ये फिक्स हो गया सर. तो फिक्स्ड पॉइंट पे दिस कैन रोटेट कंप्लीटली, फिक्स्ड पॉइंट पे, बिकॉज द कंप्लीटली रोटेटेबल जॉइंट्स आर माउंटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट लिंक. कितना ब्यूटीफुली पढ़ाया था सर मैं प्लस क्लास में, यस और नो. सो दिस इज कंप्लीटली रोटेटेबल जॉइंट, तो ये लिंक पूरा घूमेगा. तो फिक्स्ड पॉइंट पे व्हेन इट मेक्स 360 डिग्री रोटेशन, यू कॉल इट एज क्रैंक. ये भी फिक्स्ड है, सो दिस इज अ रोटेटेबल जॉइंट, तो ये भी कंप्लीटली घूमेगा सर. फिक्स्ड पॉइंट पे व्हेन इट मेक्स कंप्लीट रोटेशन, दिस इज आल्सो अ क्रैंक. एनीथिंग व्हिच मेक्स 360 डिग्री रोटेशन इज नॉट अ क्रैंक. क्रैंक होने के लिए फिक्स्ड पॉइंट पे घूमना है सर. अगर हवा में घूम रहा है वो, इट्स नॉट अ क्रैंक. क्रैंक के लिए इट शुड रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट. दिस इज वन क्रैंक, दिस इज वन क्रैंक, सो देयरफॉर इट इज अ डबल क्रैंक. डबल क्रैंक, वेरी गुड. नाउ आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा सर. क्या ये समझ में आया सर? चलो कोई बात नहीं सर, एक सेकंड. यस, लेट अस से दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7. नाउ आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन. इधर देखो प्यारे दोस्तों, इधर देखो. ये फिक्स किया तो क्या मिलेगा सर आपको? Is it a completely rotatable? देखो, complete rotatable joints are on the either side of the shortest link. ये shortest है कि इसके, these are complete. ये rotatable नहीं है सर, तो fixed point के ये rotatable नहीं, तो ये क्या करेगा सर? ये rock करेगा. ये क्या करेगा सर? ये completely rotatable नहीं है, तो क्या करेगा? इस पॉइंट पे ये rock करेगा सर. So it is a double rocker. Is it okay sir? Now for example, suppose ये देखो एक बार, ये वाला फिक्स है सर. एनीवन, मान लो ये 3 है शॉर्टेस्ट लिंक, ये फिक्स है. दिस इज 5, दिस इज 6 एंड 7. देखो, दिस इज, मेरे प्यारे बच्चों देखो एक बार, दिस इज कंप्लीटली रोटेटेबल. ध्यान से सुनिए सर. दिस इज, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स लिंक है सर. दिस इज कंप्लीटली रोटेटेबल, दिस इज कंप्लीटली रोटेटेबल, ठीक है सर. एज दिस इज कंप्लीटली रोटेटेबल, फिक्स्ड पॉइंट पे ये कंप्लीटली रोटेट करेगा, लेकिन ये नॉट कंप्लीटली रोटेटेबल, तो ये क्या करेगा सर? रॉक करेगा. सो इट विल बी क्रैंक रॉकर. सेम गोस विद दिस. समझ में आया सर? whenever a link adjacent to the shortest link is fixed, you get crank rocker. Whenever a link adjacent to the whenever the shortest link is fixed, double rocker. Whenever a link opposite to the shortest link is fixed, rocker rocker. इसमें से क्वेश्चंस आएंगे रे बाबा. क्या करूं सर मैं? हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये कर रहा हूं रे. How triple rocker? Triple rocker is in the case of non-Grashof, sir, not in this. Non-Grashof में तीनों रॉक करेंगे, because non-Grashof means it is not satisfying Grashof criterion. That's why you should attend classes, sir. Please, Mr. क्या है ये? राघु केस. Please, मैं आपको दंडवत प्रणाम कर रहा हूं, because you have not come with complete preparation. Because if that is the case, it will be difficult, sir. मैं ओके, देखो सर, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर. इधर देखो, दिस एंगल इज 45. देखो देखो, एक सेकंड, कलर चेंज करेंगे सर. सेम लाइन देखो, ये सेम लाइन. हाउ विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस सर? बिकॉज दिस विल स्लाइड अलोंग दिस, मतलब इसका वेलोसिटी विल बी अलोंग दिस ओनली, अलोंग दिस. ओके, ये लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना कर रहा है सर? 45. वेरी गुड. अगर ये ऊपर जाता है तो ये कहां जाएगा सर? इफ दिस इज अ रिजिड लिंक, इफ इट गोस अप, इट विल गो डाउन. तो इसके लिए ऑप्शन क्या है सर मेरे प्यारे बंधुओं?
What is the option for this? When this is sliding like this will slide like this. So therefore इसके लिए option है ऐसा. Let this be velocity of p. ठीक है सर जी. अगर ये देखो same line horizontal, what will be this angle sir? Same line horizontal 45, this line angle 45, the same velocity parallel to this parallel horizontal, this will be 45. वेरी गुड सर. देखो प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक पॉइंट बताया था सर, एक सेकंड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है सर. बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चंस कैन कम. कहां ले लेंगे सर? This is point A, this is point B, correct sir? This is A and this is B. A is like this. What is the velocity of A given, sir? I think it is 3 and this angle is 45. How to find out this velocity, sir? Can anyone tell how to find out this velocity, sir? Anyone, sir? How to find out? ध्यान से सुनिएगा सर, मेरे प्यारे बच्चों. Whenever the link is a rigid link, can there be relative velocity along the link? मान लो एक छोटी सी बात सर, इसका velocity along the link देखेंगे. प्यारे बच्चों इधर देखो सर, मेरे प्यारे बच्चों, इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा सर, और इसका कंपोनेंट एक ऊपर आएगा सर. एक्सलेंट. ऊपर मींस अपोजिट, अपोजिट इज 3 sin 45. ये एडजेसेंट इज इसका, समझ में आ रहा है सर? ये इसका एडजेसेंट, ये कितना होगा सर? इस, अरे यार क्या बच्चे हैं रे. दिस वेलोसिटी इज 3, दिस इज 45, दिस विल बी v 3, अपोजिट इज साइन, 3 sin 45 ऊपर वाला होगा ये वाला, एंड ये 3 cos 45, this will be 3 cos 45. ठीक है सर. Can you tell me the meaning of this 3 cos 45? It is the velocity along the length of the link. अब इसको रिजॉल्व करो सर, प्यारे बंधु, इसको रिजॉल्व करो. डियर स्टूडेंट्स, इसको रिजॉल्व करो तो कितना आएगा सर? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, देखो ये VB है, ये अपोजिट ये होगा VB sin 45. ठीक है, अपोजिट ये कितना होगा सर? VB cos 45. My dear loving students, I'll tell you one thing. So let us see along the length, along the length, along the length, along the length. देखो, what is this velocity, sir? Along the length of the link, at point A, the velocity is 3 cos 45. ठीक है सर जी. And at point B, this is our point B. What is the velocity, sir? At point B, it is इस डायरेक्शन में, this is VB cos 45. Now I have a question, sir. It is a rigid link. अगर दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी होता है तो क्या होगा सर? मान लो दिस वेलोसिटी इज 10, दिस इज 20, मतलब B 20 से जा रहा है और ये 10 से जा रहा है, तो क्या होगा सर? अगर ये कुछ गया तो ये तेज जा रहा है, जब ये तेज जाएगा तो ये लेंथ घटेगा सर. सपोज ये स्लो आ रहा है, ये फास्ट जा रहा है, तो ये लेंथ बढ़ेगा. बट इट इज अ रिजिड लिंक. रिजिड लिंक के लिए क्या ऑप्शन है सर? जिस अलोंग द लेंथ, whatever the velocity with which this point is moving, this should also move. कभी भी याद रखना, along the length of the link there is no relative velocity. हाँ, perpendicular relative velocity हो सकता है. क्यों? अगर यहां का एक वेलोसिटी दूसरा है तो that results in rotation. हाँ, रोटेट होने दो, कोई फर्क नहीं. कभी भी याद रखना, along the length of the link there should not be any relative velocity. Is it clear sir? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. अब देखो, तो दोनों को इक्वेट करो सर. 3 cos 45 इज इक्वल टू VB cos 45. ठीक है, तो ये गया, तो VB विल बी इक्वल टू हाउ मच सर? 3 मीटर पर सेकंड. सो यहां का वेलोसिटी आ गया 3 मीटर पर सेकंड. सो वेयर इज दैट? ये इज द राइट आंसर. इज इट ओके सर? इज इट ओके? कभी भी याद रखना, अलोंग द लेंथ ऑफ द लिंक. तो मैं आपको एक थंब रूल बताऊंगा, इधर देखो सर.
तो कुछ नहीं है सर, अलोंग द लेंथ क्या होगा, वी ए कॉस अल्फा शुड बी इक्वल टू, अलोंग द लेंथ क्या होगा, वी बी कॉस बीटा। बस ये मंत्र याद रखना सर, वी ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू वी बी कॉस बीटा। मुझे बताओ क्या ये डायग्राम सही है या गलत है सर? देखो एक बार, ये रिजिड लिंक है, देखो क्या ये सही है या गलत है सर? इज इट राइट और रॉन्ग? बिल्कुल इंस्टेंटेनियस सेंटर से आराम से कर सकते सर। क्यों गलत है सर? द वेलोसिटी ऑफ दिस अलोंग दिस इज, इसका कंपोनेंट इधर है और इसका इधर है। मेरे प्यारे बच्चों, वेलोसिटी सेम का मतलब नॉट जस्ट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑल्सो। इसका डायरेक्शन राइट है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसमें इट मींस दे आर पुलिंग, सो लेंथ विल इंक्रीज, सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो नॉट ओनली द मैग्नीट्यूड, देखो इसका along this is in the right direction, इसका along this is in the right, not only velocity should be same but direction, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं सर। इज इट ओके? यस, समवन सेड सर क्या मैं इंस्टेंटेनियस सेंटर से करूंगा? बिल्कुल करूंगा सर, इधर देखो, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे सर, इधर देखो, क्यों नहीं करेंगे? दिस इज द वेलोसिटी, इसको परपेंडिकुलर खींचो, दिस इज द वेलोसिटी, दिस द वेलोसिटी, देखो ये इधर जा रहा है तो ये इधर, तो इसको परपेंडिकुलर खींचो, खत्म सर, खत्म सर। तो इसका परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली एंगल सेम है तो सेम होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू, इट इज समथिंग लाइक एज इफ दिस इज रोटेटिंग अबाउट दिस, तो ये लेंथ सेम हो जाएगा, क्योंकि ये दिस एंगल इज सेम, तो दिस एंगल विल बी सेम, व्हेन द एंगल इज सेम तो ये लेंथ सेम होगा, सो दिस इनटू वी ए इनटू दिस लेंथ शुड बी इक्वल टू वी बी इनटू दिस लेंथ, तो लेंथ्स आर सेम, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी, खत्म, ब्यूटीफुल सर। इज इट ओके? 100% सर। ये करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा टेक्नोलॉजी, फटाफट। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। In a 4-bar linkage, S is the length of shortest link, L is the length of longest link, P and Q are other links. For getting triple rocker, anyone? Triple rocker means no link is rotating. Okay, sir? No link is rotating. तो उसके लिए क्या होगा सर? S plus L should be greater than P plus Q. यहां पे भी ग्रेटर है, लेकिन यहां पे S प्लस एल नहीं है, S प्लस क्यू है सर, S प्लस क्यू है, तो ये है सर। इज इट ओके? वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे ये ले लो। In a, if a block slides outwards on a link at a oh ho, there is a link, this link is rotating at omega of 50 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई एम सॉरी सर, माफी चाहता हूं, ठीक है, एंड ब्लॉक इज स्लाइडिंग आउटवर्ड्स, ये ब्लॉक इज स्लाइडिंग आउटवर्ड्स, ओके, इट इज स्लाइडिंग आउटवर्ड्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। What is the Coriolis acceleration? My question to you people is, when can you expect Coriolis acceleration? Whenever there is a simultaneous rotation and translation, whenever there is a rotation and ये लिंक रोटेट भी हो रहा है, उस पर एक ब्लॉक स्लाइड भी हो रहा है, डेफिनेटली कोरियोलिस रहेगा। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कोरियोलिस? 2v ओमेगा। एनीवन, इज इट करेक्ट सर? सो 2v ओमेगा, ध्यान से सुनो, this velocity should be on this, the on the link which is rotating. Very good sir. So therefore 2v कितना है सर? 30, omega is 50, how much is this? 15 to 3000 कुछ आ रहा है ना सर? Oh my god, such a huge acceleration. ठीक है? Yes. Can you tell me the direction of this? Direction of Coriolis acceleration.
एक्सलेंट, शरद said left, why? कुछ नहीं है सर, इस लीनियर वेलोसिटी को पकड़ लो, इसका बेस पकड़ लो और इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन घुमाओ, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यस एग्जैक्टली। सो लीनियर वेलोसिटी को पकड़ के इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा रोटेशन घुमाओ, सो 90 डिग्री, 90 डिग्री इन द डायरेक्शन। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाओ, इसको 90 डिग्री घुमाओ, 90 डिग्री, खत्म सर। इज इट ओके? इज इट ओके? ठीक है, राइट। इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाओ। इज इट ओके? क्या है, कौन है रे वो? राइट, आई रोलेक्स, आई रोलेक्स क्या हो रहा है? चलो ये ले लो। हाँ, एंड प्लीज प्लीज प्लीज, ये लगातार आ रहा है सर, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम बैक सर, 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट दीजिए सर, जस्ट 1 मिनट का, 2 मिनट का ब्रेक ले लो सर। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, बिफोर वी गो टू दिस गियर्स, एक सेकेंड, this is the pitch circle diameter and this is the pitch circle diameter. So if you want two gears to mate perfectly, सुनो सर, इसको बोलते हैं pitch circle diameter of, let us take this as 1, let us take this as 2. Suppose this is rotating in the clockwise direction, clockwise, तो ये इसको कैसे रोटेट होना है सर? एंटी क्लॉकवाइज, एक्सटर्नल गियर्स है सर। ओके, नाउ this is the center. Let's see kinematics of gears. So can I write this as d2 by 2 sir? d2 by 2 because the complete diameter is, these are the pitch circle diameter. देखो मैं कितना अच्छा gears पढ़ा है सर, and you know law of gearing ये सारे। टेक्निकल असिस्टेंट, हाँ हाँ सर, देखो, हाँ, this length is d1 by 2, correct sir?
This is the center O1, this is the center O2. So half of the diameter is radius, half of the diameter is radius. So what is the central distance, sir? It is d1 plus d2 by 2. Correct na, sir? d1 by 2 plus d2 by 2 d1 by. There is one term known as module. It is the pitch circle diameter by number of teeth. क्या आप बता सकते हैं what is the physical meaning of module? What is it representing physically? It represents the spread of the tooth. अगर मॉड्यूल ज्यादा है का मतलब इट वन टूथ इज ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस. सो मॉड्यूल का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है इट इज द स्प्रेड ऑफ द टूथ. सो हाउ मच स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय सिंगल टूथ, that is represented by module. Correct na sir? Okay, wait, I'm not interested in answer sir, कुछ terminology देखेंगे. तो क्या हम इसको, and if two gears are to mesh, what should be the module of both gears? अगर दोनों gears को mesh होना है सर, दोनों के module क्या होना है सर? For two gears to mesh properly, for two gears to mesh properly, module should be same. So what will be the module, sir? M1 is equal to M2. So what is M1, sir? D1 by T1 is equal to D2 by T2. These are pitch circle diameters. So can I write this as D1 by D2 is equal to T1 by T2? This is the first equation, sir. And we can also write D as M into T. Suno, sir. So what will be the central distance, sir? It will be D1. What is D1? Don't write M1 T1. M1 M2 are same. Let me write it as M. So this will be MT1 MT1 plus D2. What is D2? MT2 by 2. So therefore, the central distance is equal to M by 2 into T1 plus T2. This is the equation for central distance. Okay, sir. And one more thing. So this is nothing but pitch point. This is nothing but pitch point. At the pitch point, actually, this is the instantaneous center. So यहाँ पे what from Aron-Holt-Kennedy's theorem I have derived in class, this will be the instantaneous center. अब बताओ sir. तो at the instantaneous center what will be the pitch line velocity? Here the velocity should be same. तो अगर हम ये point इस पे लेते हैं और ये point इस पे लेते हैं, it should have same velocity. What will be the velocity here? Pi d n by 60. दोबारा बता रहा हूँ. So r omega, इसको देखो एक बार. What will be the velocity, sir? यहाँ का वेलोसिटी अगर हम ये इस पे ले रहे हैं तो इट विल बी पाई d1 n1 by 60. That is the velocity of this point when I took that point on 1. So what will be the velocity at the same point when I take on 2? It will be pi d2 n2 by 60. So therefore these two should be same because at the instantaneous center, whether you consider the point instantaneous center ka matlab at that point there is no relative velocity whether I consider the point on first member or second member. Sir sab bhul gaye sir aap. So therefore this should be same. So pi by 60 gaya. So d1 n1 is equal to d2 n2. So or d1 by d2 is equal to d1 by d2 is equal to n2 by n1. ध्यान से सुनो सर. d1 by d2 is equal to n2 by n1. तो यहाँ पुट करना सर. So final equation will be d1 by d2 is equal to t1 by t2 is equal to d1 by d2 is t1 by t2. But what is d1 by d2? n2 by n1. This is known as kinematics of gears. ये याद रख लेना सर. इसको मैं दो तरीके से याद रखूंगा. d1 n1 is equal to d2. देखो d1 n1 is d2 into or n1 t2 n1 t1 is equal to n2 t2. मतलब d1 n1 is d2. देखो d1 n1 is equal to d2 n2 or n1 t1 is equal to, ऐसा याद रख लेना. t1 n1 is equal to d2 into एक इक्वेशन, n1 t1 is equal to n2 t2. That's it sir. ये याद रख लेना, काइनेमेटिक्स हो जाएगा. इज इट ओके सर? बोलो सर जी. चलिए, now let's take this question. देखो, let's take this question. ना a fixed, हाँ ये वो वाला नहीं है रे, ये कुछ अलग है. देखो, a fixed gear having 200 teeth is in mesh with another gear having 50 teeth. देखो एक बार, there is a fixed gear and there is another gear. इसको हम 1 ले लेंगे और इसको 2 ले लेंगे. So fixed gear has anyone? इसके ऊपर कितने टीथ है सर?
and number of teeth on this is given by 50. ठीक है सर, and these two are connected by arm. This is the arm. Is it okay? बोलो सर, कुछ तो बोलो। ये क्वेश्चन रेगुलरली आया सर, रेगुलरली आया सर। ठीक है, अब देखो नाउ इसको क्या करेंगे, वेरी सिंपल सर। इसका एक्सिस प्लैनेटरी गियर है, तो इसका बिकॉज अबाउट दिस इट इज रोटेटिंग, तो इसका एक्सिस चेंज होते जा रहा है सर। प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली, द एक्सिस ऑफ दिस गियर कीप्स ऑन चेंजिंग। ओके, अब देखो मैं आपको ब्यूटीफुल टेबुलर मेथड बताऊंगा, रटने की कोई बात नहीं है। तो इसको रेगुलरली दिस क्वेश्चन इज कमिंग। ठीक है सर, अब देखो लेट अस फॉर्म अ टेबल। मैं आपको अच्छा टेक्निक बताऊंगा सर, मतलब कंफ्यूजन ही नहीं है सर, कंफ्यूजन ही नहीं, अच्छा टेक्निक बता रहा हूं। देखो ये आर्म है, ये आर्म है, दिस इज आर्म, ये आर्म है, दिस इज गियर 1 एंड दिस इज गियर 2। कुछ नहीं, एक टेबल बनाओ। ठीक है सर, समझ में आ गया। ओके सर, सिंपल टेक्निक बताऊंगा सर, सिंपल टेक्निक। इधर देखना, लेट द आर्म बी फिक्स्ड। मैं कुछ अज्यूम कर रहा हूं, अरे मेरे अजम्पशन से ये इसको कोई लेना देना नहीं है सर। लेट मी अज्यूम, लेट द आर्म बी फिक्स्ड, आर्म बी फिक्स्ड and gear 1 rotate counterclockwise x revolutions per minute। दोबारा बता रहा हूं सर, सर आम तो मूव हो रहा है ना, अरे सुनो ना, मैं आपको सिंपल टेक्निक बता के छोड़ दूंगा एंड यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। लेट द आर्म बी फिक्स्ड, मैं एज्यूम कर रहा हूं लेट द आर्म बी फिक्स्ड। हाँ जी सर, तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ आर्म? 0। and gear 1 is rotating at x revolution counterclockwise and anti-clockwise। जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस को पॉजिटिव लेते हैं। अब बताओ सर, इफ गियर 1 इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ गियर 2? डेफिनेटली ये दोनों एक्सटर्नल गियर से अपोजिट होगा। बात क्लियर है सर? सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आंसर सर, थोड़ा रुको, मैं आपको एक टेक्निक देके छोड़ दूंगा। ओके नाउ देखो, अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा, दिस रोटेट्स क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इज टेकन एज माइनस, एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन एज प्लस। उल्टा भी ले सकते सर, द कन्वेंशन इज योर्स। ओके, क्या आप बता सकते हैं नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ 2? अभी तो बताया सर, अगर आर्म फिक्स है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो क्या अभी तो बोला N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। बोला नहीं बोला सर? ये किसके लिए होगा? जो गियर्स मिश में है। बिल्कुल सर, ये दोनों कांटेक्ट में है। ओके, N1, व्हाट इज N1 सर? N1 का स्पीड कितना लिए? x। N1 का स्पीड x लिए, व्हाट इज T1 सर? 200 इज इक्वल टू N2, व्हाट इज N2? मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। एंड व्हाट इज T2 सर? T2 50। What is the value of N2 sir? It is 4x। Should I take this plus or minus? Because already you have taken x as counterclockwise, speed of 1 as counterclockwise लिए, तो 2 को क्या लेना है? clockwise, तो ये clockwise आएगा ही, तो it will be minus 4x। That's it sir, प्रॉब्लम खत्म हो गया, प्रॉब्लम खत्म हो गया सर, प्रॉब्लम खत्म हो गया। नाउ यू ऐड y। क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज इस प्लैनेटरी गियर के डिग्री ऑफ फ्रीडम दो होते हैं, इसलिए दो इनपुट चाहिए। यू ऐड y टू ऑल। सर ये क्या लॉजिक है सर? सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, सुन, ये लॉजिक क्या है बता रहा हूं। वी आर इन वन फ्रेम एंड ऑल ऑफ अस, वी आर इन ए स्टेशनरी फ्रेम, ठीक है, एंड ऑल ऑफ अस आर इन ए मूविंग फ्रेम। तो क्या रिलेटिव में बदलाव आएगा? नहीं आएगा ना सर, जैसा फ्रेम मूव हो रहा है वैसे ही हम भी चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एस्केलेटर ले लो, जो होता है, तो देखो हम खड़े हैं, एस्केलेटर जा रहा है, तो दोनों खड़े हैं,
तो दोनों भी मूव नहीं हो रहा है, एस्केलेटर ही मूव हो रहा है, सो दोनों में कोई रिलेटिव वेलोसिटी में बदलाव आएगा? नहीं आएगा सर। सो देयरफॉर लेट अस ऐड y टू ऑल, लेट अस ऐड y टू ऑल। हो गया सर। अब सवाल पे आइए सर, कभी भी याद रखना यही प्रोसीजर करना। व्हाट इज द प्रोसीजर? लेट द आर्म बी फिक्स्ड, वन इज रोटेटिंग एट x काउंटर क्लॉकवाइज, तो अगर का स्पीड फाइंड आउट करो और y ऐड कर देना। हो गया सर। अब मुद्दे पे आइए। देखो देखो आर्म, देखो एक सेकंड, वन रेवोल्यूशन ऑफ आर्म, ये आर्म का स्पीड है सर। तो आर्म का स्पीड y है, ऑलरेडी y इज गिवन एज वन रेवोल्यूशन, ठीक है सर। देखो गियर वन इज फिक्स्ड, गियर वन का स्पीड क्या है सर? x प्लस वाई। एक्चुअली फिक्स्ड है, उसका वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। इट इज फिक्स्ड, तो वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द स्पीड? ऑलरेडी स्पीड वन इज फिक्स्ड, गियर वन इज फिक्स्ड, तो दिस इज द स्पीड ऑफ गियर वन। तो ये मेरे एनालिसिस से है, आई विल पुट दिस इन द गिवन कंडीशन। वेरी गुड सर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ टू सर? इट इज y माइनस 4x। वेरी गुड सर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, y को वन पुट करना इधर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। y को वन पुट करना, तो x इज इक्वल टू माइनस वन, तो n2 विल बी इक्वल टू y कितना है सर? y इज ऑलरेडी वन, y इज ऑलरेडी वन, माइनस फोर इंटू x इज माइनस वन, तो कितना होगा सर? माइनस वन माइनस प्लस, तो फोर प्लस वन इज फाइव। तो इसका मतलब क्या है? इफ द आर्म इज मेकिंग वन रेवोल्यूशन, द सेकेंड वन इज मेकिंग फाइव रेवोल्यूशंस, तो आंसर इज फाइव। अब समझ में आया सर? सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, क्या आप करेंगे सर? आई वॉन्ट यू, बिकॉज इसका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन। बोलो सर। अरे अल्लाह, if this is clear I will proceed. Yes, just chips. हाँ, लार्ज वेलोसिटी रेशियो, लार्ज स्पीड रिडक्शन के लिए वार्म एंड वार्म वेल, इवन हंड्रेड्स थाउजेंड्स तक भी जाएगा। लार्ज स्पीड रिडक्शन, वार्म एंड वार्म वेल। ठीक है सर, ये कर फटाफट कर। द रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर इन मिलीमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ, अभी तो बताया, इट इज नथिंग बट मॉड्यूल। तो ये बताओ सर मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉड्यूल सर? अरे ये क्या है रे? द पिच डायमीटर इज इक्वल, देखो, द मॉड्यूल इज इक्वल टू पिच डायमीटर बाय नंबर ऑफ टीथ। सो इफ यू वांट द पिच डायमीटर, इट इज मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ। तो it is the product of the pitch circle diameter is the product of module and number of teeth। सिंपल सा टेक्नोलॉजी, ये करो। हाँ, फटाफट फटाफट, आज आपको छोड़ेंगे नहीं सर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। Two mating gears have, what is spur gear? In spur gears, the teeth are cut parallel to the axis of rotation। ठीक है, चलो। हैज, एक गियर पे टीथ है 40 और दूसरे गियर पे टीथ है 120। ठीक है सर। द स्मॉलर वन वी कॉल इट एज पिनियन, द बिगर वन गियर। पिनियन मतलब स्मॉलर वन, देखो ये स्मॉलर वन स्मॉलर वन स्मॉलर वन, आई हैव टेकन इट एज वन। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पिनियन? 1200 rpm, and the pinion is transmitting a torque of 20 newton meter। what is the torque transmitted by the bigger one gear? कैसे करेंगे सर? आप जानते हैं, whenever there is no power loss, मेरे प्यारे बच्चों, whatever the input power is given, I should get the output power। अगर कुछ efficiency of transmission is not given, whatever the input power is there, I'll get the output power। देखो, तो can I write power is torque into speed omega। so power is torque into speed should be equal to this। do you agree with this sir? क्या आप अग्री करेंगे इसको? बिल्कुल सर, पावर इज इनपुट, अगर कोई लॉसेस नहीं है,
whatever the input is there, I should get output. बहुत बढ़िया sir. T1. What is omega? 2 pi n by 60. What is omega 2? 2 pi n2 by 60. तो 2 pi by 60, 2 pi by 60 is gone. So therefore, तो ये देखो ये नंबर ऑफ टीथ नहीं है, तो हा एक सेकंड रे, यू मे बी गेटिंग कंफ्यूज्ड सर, इसको टॉर्क करेंगे हम। टॉर्क नंबर ऑफ टीथ नहीं लेंगे, ये टॉर्क 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 राइट। सो टॉर्क ऑफ वन, स्पीड ऑफ वन, टॉर्क ऑफ टू, स्पीड ऑफ टू। एक्सलेंट। यहां पे तो एक ही स्पीड है सर, तो ही इज आस्किंग द टॉर्क ऑन सेकंड। कैसे करेंगे सर? अभी तो आपके टीचर ने बताया N1 T1 whenever two gears are in mesh, ये प्रॉपर्टी आ गया सर। सो व्हाट विल बी N2 सर? N1 T1 by T2, therefore N2 will be equal to N1. N1 is 1200 and T1 is 40 divided by T2, that is 120. तो ये आ रहा है आपका 400 सर RPM. N2 is 400 RPM. Torque of one is, what is the torque of one sir? 20. And what is the speed of one sir? Speed of one is 1200. That should be equal to torque of two. What is torque of two? वही तो calculate करना है sir. Into speed of two. Just now you have calculated speed of two as 400. Excellent sir. 400 ones, 400 threes. 20 into 3. So the torque transmitted by the gear is 20 into 3, 60 Newton meter. Is it correct? कुछ तो बोलो सर। Yes, very good students of India. ये करो। हाँ, सेम क्वेश्चन विच आई वाज। हाँ, अब ये करो सर। एक्चुअली ये कॉन्टैक्ट है सर, डोंट थिंक दैट ये कॉन्टैक्ट नहीं है। इट्स नाउ यू प्लीज डू इट। ये फिक्स्ड गियर है, अब करो सर। नाउ आई वांट एवरीवन टू डू दिस। दिस इज द सेम क्वेश्चन, प्लीज डू इट। आई एम वेटिंग फॉर यू। प्लीज डू इट। You have to do it, sir. Planetary gear is in contact. This is the planetary gear. मतलब जिसके जिसके अराउंड घूम रहा है, इट इज प्लानिटरी गेयर। Is in contact with fixed gear. This is fixed gear. The number of rotations made by planetary gear for one rotation of arm. Same question sir, same question sir, same question, same question. क्या करना चाहिए सर? आप देखो, प्रैक्टिस हो जाएगा सर। What are you supposed to do? देखो देखो एक बार देखो। हाँ, गियर वन, इसको हम गियर वन ले लेंगे, इसको गियर टू ले लेंगे। दिस छोटा वन प्लानिटरी गियर टू, फिक्स्ड गियर को वन ले लेंगे। दिस इज अ आर्म। लेट, देखो यहां पे लिख रहा हूं, लेट द आर्म बी फिक्स्ड एंड गियर वन रोटेट at x rpm काउंटर क्लॉकवाइज। तो क्या लिखेंगे? आर्म इज फिक्स्ड 0 and gear 1 is rotating x rpm, this is the speed of 1। ठीक है, तो कैन यू गेट द स्पीड ऑफ 2 सर? अभी तो बताया these two are in mesh। तो n1 t1 is equal to n2 t2। हाँ जी सर। what is n1? n1 का मतलब इसका स्पीड, इसका it is x। n1 इसका x मान लिए। what is the number of teeth? देखो ये 75 है सर, these are the number of teeth, these are the number of teeth sir, yes 25 है sir। so this is n1 is 75 teeth and ये पता नहीं sir, and the number of teeth are 25। so what is the speed of 2 sir? 3x। is it correct sir? what is the speed of 2? 25 once, 25 3x। now you tell me, should I take this as plus or minus? I took this as counterclockwise as positive, and you know very well
अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज होगा। कोई भी नहीं बोल रहा है सर, आप दुख लगता है सर, यहां से दर्द दे रहा है सर। इट विल बी -3x। What is the next step, sir? It is -3x. What is the next step? Add y to all. 0 plus y, x plus y. 0 plus y is y, x plus y. Add y to all. अब देखो सर, now procedure is very simple. क्या बोला? The कहाँ है रे? For one rotation of arm is making one rotation and gear 1 is fixed. Gear 1 is fixed मतलब ये speed 0 होना चाहिए. X plus y should be 0 or x is equal to -y or x is equal to -y is -1. तो मुझे चाहिए speed of 2. What will be the speed of 2, sir? It will be y minus 3x. So y minus 3x. तो y कितना है सर? y is already known 1. -3 into x is -1. तो कितना आएगा सर ये? 3 plus 1 4. Yes, it is 4. बिल्कुल 4 is the right answer, सर. कहाँ है सर? Where is the 4? ऑप्शन है? अरे बाबा, कुछ तो बोलो सर जी. Same thing. I'm expecting this question, sir. In a reverted gear train, the first and last gears are coaxial. They are on the same axis. So it is the reverted gear train. मैं आपको इस पे बहुत क्वेश्चंस भी करवाया सर क्लास में. ठीक है, ये करो. हाँ, it is required to connect two parallel shafts. The distance between them whose axes are small and variable. अच्छा, axes are कुछ idea है सर? Axes are parallel, but they are separated by a small distance. कुछ idea आ गया सर? बताया था Oldham coupling. Oldham coupling. Can anyone in the class tell Oldham coupling is the inversion of what? चॉकलेट मिलेगा सर आपको. इसका इन्वर्शन है. एक्सलेंट, नवीद इज करेक्ट. अखिल क्या हो रहा है? ट्रैमल मत बोलो सर. एलिप्टिकल ट्रैमल, स्कॉच योक मैकेनिज्म एंड ओल्डहैम कपलिंग, दीज आर ऑल इन्वर्शंस ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म. डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म याद रख लेना. elliptical trammel which traces ellipse, yes, it is also inversion of double slider crank. एक सेकंड, कुछ थ्योरी दूंगा सर, सुनो. A reverted gear train is one in which the first and last gears are on the same axis. He said false statement. So is this a false statement or correct statement? True. बट वो ट्रू पूछा, ये ट्रू स्टेटमेंट है सर. ठीक है, इसको थोड़ा छोड़ दो, मैं आ रहा हूं सर. A planetary gear train is one in which the axis of some of the gears may have motion. Yes, अभी तो देखें सर, इधर देखो. Just now you have seen. देखो ये प्लैनेटरी गियर में इसका जो एक्सिस है ना वो तो चेंज होते ही जा रहा है सर. सो देखो दिस इज द फिक्स्ड वन, बट इसका जो एक्सिस है ना, व्हेन द आर्म इज रोटेटिंग दिस गियर इज फिक्स्ड. इसका जो एक्सिस है वो तो चेंज होते ही जा रहा है. सो इन अ प्लैनेटरी गियर ट्रेन द एक्सिस ऑफ वन ऑफ द गियर्स विल चेंज. ये भी सही है सर. दिस इज आल्सो करेक्ट. A planetary gear train is one in which the axis of the axis have in motion. बिल्कुल axis is in motion. Axis is in motion का मतलब axis is changing. ठीक है सर. A compound gear train is one which has two or more gears on the axis. लेकिन एक्चुअली यहाँ पे वर्ड टू और मोर एक्टिव गियर्स है. ठीक है, टॉलरेबल. सो यस, कंपाउंड गियर के लिए एक शाफ्ट पे एक से ज्यादा गियर्स रहेंगे, बट एक्टिव है वो तो ठीक है. दिस इज आल्सो करेक्ट, बट ही इज आस्किंग फॉल्स स्टेटमेंट सर. मुझे ट्रेन वैल्यू चाहिए. इधर देखो सर, प्यारे बच्चों, इधर देखो, आराम से देखो सर, कुछ थ्योरी दूंगा आपको. Let us assume this is the shaft.
आराम से, टेंशन नहीं लेने का। some theory I am giving. This is one shaft. This is the second one. Sorry. Okay. आराम से, टेंशन नहीं लेने का रे बाबा। This is first gear. This is second gear. This is third gear. And this is fourth gear. So दिख रहा है सर आपको 1 2 3 4 दिख रहा है सर? देखो बेटा, मैं वॉल्यूम को, मैं पता नहीं यार, बहुत लोग यही बोल रहे हैं वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है। मुझे मुझे पता नहीं सर, मेरे डिवाइस में तो हाई है सर, आई डोंट नो। देखो एक सेकंड प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, कैन आई कॉल दिस एज अ कंपाउंड गियर ट्रेन? देखो एक बार, ऑन दिस शाफ्ट देयर आर टू गियर्स बट बोथ आर एक्टिव गियर्स। व्हाट डू मीन बाय एक्टिव गियर? ये वाला गियर इससे घूम रहा है, सो दिस इज इनपुट, यहां से ये घूम रहा है, तो दिस इज रोटेटिंग, तो ये इसको घुमा रहा है, सो दोनों एक्टिव है। अब देखो, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट, मान लो सर, या फिर ये इनपुट है तो ये आउटपुट होगा, कोई टेंशन नहीं है सर। मुझे बताओ व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस सर? ये फर्स्ट है तो n1 होगा, इसका स्पीड क्या होगा सर? शाफ्ट तो एक ही है सर, क्या मैं इससे n2 is equal to n3? बोलो रे, these two gears, red one and green one, they are mounted on the same shaft, तो शाफ्ट तो एक ही रोटेशन करेगा ना रे, तो whether it is second gear or third gear, तो this shaft is a single shaft, n2 is equal to n3 and let this be n4। ठीक है सर, समझ में आ गया? एक टर्म होता है वेलोसिटी रेशियो, इट इज नथिंग बट स्पीड ऑफ इनपुट by speed of output. This is known as velocity ratio. Is it clear, sir? बोलिए सर। हाँ या ना? दिस इज द वेलोसिटी रेशियो। ठीक है सर। इस केस में देर इज वन टर्म नोन एज ट्रेन वैल्यू, it is nothing but 1 by velocity ratio. Train value is nothing but 1 by velocity ratio. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? सो ट्रेन वैल्यू टीवी लिखेंगे इज उल्टा इसका, तो n of output by n of input। बिल्कुल सर, बिल्कुल, दिस इज द ट्रेन वैल्यू। ठीक है सर। अब देखो, ट्रेन वैल्यू इज रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी रेशियो। ठीक है सर, वेरी गुड। देखो आउटपुट का क्या है सर? इस केस में आई एम टॉकिंग अबाउट दिस केस, व्हाट इज द आउटपुट सर? आउटपुट इज n4 एंड व्हाट इज इनपुट सर? इनपुट इज 1। ठीक है सर, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैन आई राइट दिस एज n4 by n1 as n4 by n3, n3 by n2 into n2 by n1? Do you have any objection sir? Can I write this sir? Can I write this sir? बोलो। if you are not happy, ये काट दो, ये काट दो, you get n4 by n1 only। ठीक है सर। so train value is equal to one more thing, what is the speed of n2 and n3? n2 n3 तो सेम है, so this will get cancelled out because they are same, so this will be equal to n4 n2 by n3 n1। absolutely fine। मेरे प्यारे बच्चों, are these two gears in mesh? Yes, they are in contact, so whenever they are in contact I can write
N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2, जो कांटेक्ट में है उसी के लिए ये वैल्यू होता है सर. एंड इज 3 4 इन कांटेक्ट? यस, 3 4. डोंट राइट N2 T2 is equal to N3 T3. They are not in contact. N3 T3 is N2. ये इसको मत लिखना, जो कांटेक्ट में है उसके लिए लिखना है. ठीक है, ये कांटेक्ट में है सर. तो N3 T3 इज इक्वल टू N4 T4. ठीक है सर. देखो ट्रेन वैल्यू, what is N4 by N3? N4 by N3, N4 by N3 is T3 by T4. N4 by N3 is T3 by T4. ठीक है सर. And N2 by N1. What is N2 by N1 sir? N2 by N1 is T1 by T2. This is T1 by T2. This is the train value. एक बार देखना. What are gears 1 and 3? सुनो सर. 1 is driver और 2 क्या है? ड्रिवन. 2 क्या है? ड्रिवन है सर. 1 इज ड्राइविंग, इनपुट 1 इज ड्राइविंग, तो 2 इज ड्रिवन. जब 2 घूम रहा है ऑटोमेटिकली ये 3 क्या कर रहा है सर? अब ये व्हेन दिस शाफ्ट इज रोटेटिंग, जब ये शाफ्ट घूम रहा है सर, तो ऑटोमेटिकली ये घूमेगा. सो व्हेन जब ये घूमेगा, अब ये इसके लिए फॉर 4 दिस विल बिकम ड्राइवर एंड दिस 4 इज ड्रिवन बाई, ये 4 को कौन घुमा रहा है सर? इस 4 को कौन घुमा रहा है? 3. 4 के लिए 3 ड्राइवर है, तो 4 इज ड्रिवन. तो अब बताओ सर, व्हाट इज T1 T3? 1 इज ड्राइवर, 3 इज, क्या कह रहे हो? 3 इज ड्राइवर, 1 and 3, 1 and 3 is driver. So can I write this as product of teeth on driver? Yes. अरे पता नहीं, हाँ, डिवाइडेड बाई T2 T4. 2 is driven, 4 is driven. This is product of teeth on driven. So this is the train value. Train value is nothing but it is the product of teeth on driver to the product of teeth on driven. याद रहेगा. सो अगर वेलोसिटी रेशियो पूछ रहा है तो उल्टा, व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो? प्रोडक्ट ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन टू द प्रोडक्ट ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर. क्या ये बात सबको समझ में आई सर? सो अगर ट्रेन वैल्यू पूछ रहा है, इट शुड बी ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर, डिनोमिनेटर में ड्रिवन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन. लेकिन हमें क्या है सर? प्रोडक्ट देखो, ड्राइवर ड्राइवर, तो वो बोल रहा है इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टीथ ऑन द ड्रिवन. बोला है, गलत है सर, ये गलत है. अगर यहां पे इंस्टेड ऑफ ट्रेन वैल्यू इफ द वेलोसिटी रेशियो इज गिवन, तब ये सही होगा सर. So this is a wrong statement. This is the wrong statement and have to pick up the false statement. So this is the right answer. नहीं है सर आपको. मैं क्या बोलूं सर? Have you understood सर? मुश्किल है रे चस चिप्स अकेला पढ़ रहा है सर, बहुत अच्छा. डॉक्टर दिव्या, गॉट इट ना? बहुत बढ़िया सर. थ्योरी देते हुए पढ़ा रहा हूं सर, मैं थ्योरी देते हुए पढ़ा रहा हूं सर. Already the theory is given to this. In the gate train of 1:10, what do you mean by 1:10? Number of, अरे यार हम number of teeth को T नहीं T ले लेंगे सर. ठीक है, क्या पूछा है सर? फिगर पीनियन ट्रांसमिट्स 250. ये पीनियन है सर, ये पीनियन. व्हाट इज द टॉर्क ट्रांसमिटेड? पावर है. अच्छा 250 एट, देखो व्हाट इज द स्पीड ऑफ पीनियन सर? ध्यान से सुनो. पीनियन इज स्मॉलर वन, पीनियन. सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ पीनियन? 1800 rpm. What is the tangential load on the gear tooth?
ये गियर टूथ है, इस पे टेंजेंशियल लोड पूछा है सर। ध्यान से सुनिएगा सर मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो, if this is the tangential force, what will be the torque on this, sir? Torque is equal to tangential force into radius. Can I write this radius as half of the diameter? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब देखो, आराम से देखो। So if there is no loss of power, सुनो carefully, if there is no, समझ में आ रहा है सर सभी को? Okay. Now can I write these two gears are in mesh? अगर दोनों gears mesh में हैं तो क्या मैं N1 T1 is equal to N2 T2 लिख सकता हूं सर? Yes. N1 is 1800 and T1 is 14. N2 मुझे पता नहीं है, T2 is 140. तो what is the speed of N2? 180 is the speed of N2. चलो कोई बात नहीं सर। And you know very well, power is equal to torque into omega is 2 pi n by 60. तो पूछा क्या है सर? What is the tangential load on the gear tooth? इस पे पूछा है सर, इस पे पूछा है सर, इस पे पूछा है gear tooth। सुनो सर, सर अच्छा क्वेश्चन है सर। ओके, तो गियर पूछा है, सो इसको हम T2 लिखेंगे, गियर को 2 ले लेंगे, गियर को 2 ले लेंगे, पिनियन को 1 ले लेंगे, ये पूछा है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, पावर कैन बी रिटन एज टॉर्क। कैन आई राइट टॉर्क एज टेंजेंशियल फोर्स ऑन द टू इनटू हाफ ऑफ द डायमीटर? देखो, टेंजेंशियल फोर्स इनटू डायमीटर बाय 2। यस सर, यस सर। इनटू 2 पाई n2 बाई 60। कोई टेंशन की बात नहीं है सर। The only thing is power is already known, 250 kilowatt. Whether it is a gear or pinion, same power is transmitted. I'm assuming without loss. तो ये है सर। Diameter पता नहीं, speed into हम calculate किए। Somehow if you calculate d2, the pitch circle diameter of this gear 2 problem is solved. How to calculate sir? How to calculate? देखो देखो एक सेकंड, देखो सर एक सेकंड। The central distance is given sir. Okay. सुनो केयरफुली, d1 by 2, d2 by 2, d1 by 2 plus d2 by 2 is 660. और कुछ आइडिया है सर? अब आई वांट d2, सो d1 plus d2 is equal to 0, 6 2 12 1, ये हो गया सर। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट d2, वन मोर इक्वेशन इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। कहां से लेंगे? अभी आपको बताया था सर, बताया था। सो मॉड्यूल ऑफ गियर and module of pinion must be same, मतलब d1 by t1 is equal to d2 by t2. So d1 by d2 is equal to, d1 by d2 is t1 by t2. So therefore d1 by d2 is equal to t1 is 14 and t2 is 140. So d1 by d2 is equal to 1 by 10. So correct है सर। तो मुझे d2 चाहिए, तो what will be d1 sir? d1 is d2 by 10। पुट करो यहाँ पे, d1 is d1 इधर पुट करो सर, d1 is d2 by 10, d1 is d2 by 10 plus d2 is equal to 1320। तो ये 11 आ रहा है सर, तो ये 11 आ रहा है सर, 11 11 d2 by 10 is equal to 132। सो d2 कितना आ रहा है सर? 11 ones, बिल्कुल सही है सर। इज इट करेक्ट? Felonid is correct, यहां पुट कर लेना सर। नाउ एवरीथिंग इज नोन। N2 is कितना है सर? 180, 180 आरपीएम। ठीक है, यहां पुट करो सर। एवरीथिंग इज नोन, लेट मी पुट इट हियर। बिल्कुल आएगा सर, क्या ये क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? सो पावर इज, देखो आई विल टेक दिस इक्वेशन, व्हाट इज द पावर? 250 into 10 power 3 ft2, I do not know, into
D2. What is D2? What is D2? What is D2? कहाँ गए रे? D2 is 1200, लेकिन हम इसको 1.2 मीटर ले लेंगे सर, 1.2 मीटर ले लेंगे. Yes, it is 1.2. D2 by 2 into 2 pi into speed is 180 by 60. So everything is known. FT2 बताओ सर. कैलकुलेटर कहाँ है रे? Where is the calculator? क्वेश्चन भी करेक्ट है ना? सो कंप्लीट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में सारे आ गए. देखो क्लियर? बहुत बढ़िया. हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन सर? माय डियर स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? यस. अरे फर्स्ट एंड लास्ट गियर सर कोएक्सियल, ये तो 1000 बार पूछा है सर. रिवर्टेड गियर ट्रेन, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. ये रिपीट हो रहा है, ये तो डबल टाइम टाइप किया सर हमारा बड़े साहब. हाँ, ये करो. कम ऑन. If the rotating mass of a rim type flywheel is distributed on another rim type whose mean radius is half the mean radius, energy stored, ध्यान से सुनो, the energy stored in the flywheel is a half I omega square. ठीक है सर. But what is he saying? The energy is stored at the same speed. मतलब speed is not changing. So can I say when the speed is constant, the energy stored is directly proportional to mass movement of inertia? Yes, sir. तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर? E2 by E1 is equal to I2 by I1. 100% I can write, sir. Wait. And it is a disk type. देखो क्या बोले, अनदर रिम टाइप बोला है, तो पूरा मास एक ही जगह है सर. ठीक है सर. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर? रिम टाइप बोला. रिम टाइप मींस ऑल इज concentrated at one place. So therefore can I write this as mr square sir? So क्या मैं, देखो और एक बात है सर, और एक बात क्या बोला है सर, कहां पे है सर? rotating mass of the is distributed. If the rotating mass of the rim type is distributed on another rim, मतलब same mass को आप दूसरे में distribute किए, तो mass is also same. तो क्या नहीं से I is proportional to R square? 100% सर. तो इसको हम लिखेंगे E2 by E1 is equal to I2 by I1 because same mass is distributed. तो mass में कोई बदलाव नहीं, only radius में बदलाव है. तो I is proportional to R square. तो it will be R2 square by R1 square. So what is he asking? So E2 by E1 is equal to what is R2 sir? देख बार. So देखो एक बार, whose mean radius is half of the radius of the former. पहले का रेडियस अगर R है तो सेकंड वाले का कितना है? हाफ. तो कैन आई राइट R2 as R1 by 2, R2 as R1 by 2, and this is R1 square. So what is the value sir? E2 by E1 is equal to कितना होगा सर? R1 स्क्वायर गया तो ये 1/4 हो जाएगा सर. 1/4 ऑफ द फर्स्ट वन. इज इट करेक्ट? ये आ रहा है क्या? नहीं, उल्टा हो गया ना रे. 1/4 होगा सर. बी केयरफुल सर, बी केयरफुल. ये करो. कम ऑन, कम ऑन. एनीवन?
देखो, the wrong statement. Flywheel, it is used to limit fluctuation of speed during, ध्यान से सुनो सर, फ्लाईव्हील वर्क्स इन अ साइकिल, एक साइकिल में, मतलब इट इज समथिंग लाइक हमारा जिंदगी है सर, फ्लाईव्हील इज नथिंग बट ह्यूमन लाइफ, लाइक अ साइकिल, आप ना कुछ लेके आए और कुछ कुछ भी नहीं लेके जाएंगे आप ऊपर, तो फ्लाईव्हील ना कुछ लाया कुछ लेगा, सो अगर एनर्जी एक्सेस है वो स्टोर करेगा, अगर कम है तो सप्लाई करेगा, मतलब एक साइकिल में लेना देना छोड़ के फिर देखो, फॉर एग्जांपल से दिस इज द साइकिल, whatever the energy it has here, so it may gain, it will lose again if the cycle is over, यहां पे जितना एनर्जी है साइकिल के बाद उतना ही रहा, so flywheel controls fluctuation of energy in a cycle, फ्लक्चुएशन जो स्पीड के फ्लक्चुएशंस हो रहे ना, स्पीड के फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करता है इन ए साइकिल, लेकिन गवर्नर ऐसा नहीं करता सर, गवर्नर मीन स्पीड को कंट्रोल करता है ड्यू टू वेरिएशन इन लोड, जब लोड चेंज हो रहा है तो स्पीड चेंज होगा, जब लोड चेंज होगा तो गवर्नर काम में आएगा, सो फ्लाईव्हील फॉर अ कांस्टेंट लोड इन अ साइकिल इट reduces the fluctuations of speed in a cycle, एक साइकिल में स्पीड के फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस करता है। अब देखो, इट इज यूज्ड टू लिमिट इनएविटेबल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, बिल्कुल सही है सर, दिस इज द सही स्टेटमेंट, ही इज आस्किंग व्हिच वन इज रॉन्ग, it controls the mean speed, nah, it doesn't control the mean speed, so therefore he is asking wrong statement, this is the wrong statement, it stores energy and gives when required, बिल्कुल ये सही statement है सर, it regulates the speed during one cycle, yes it regulates the speed, बिल्कुल बिल्कुल एक साइकिल में, तो ये wrong statement पूछा है, तो flywheel doesn't control mean speed, समझ में आया सर सभी को, yes governor does that, okay. A circular solid disk of thickness 20 and the radius is given as, can I write this as 0.4 meter and the mass is 10 kg, is used as a flywheel and it rotates at 300 rpm, ठीक है, the kinetic energy of the flywheel is, बहुत सिंपल है सर, can I calculate omega, it is 2 pi n by 60, can you give me the value of omega sir, 2 pi n by 60, तो कितना होगा सर, is it 10 pi, यस, तो देयरफॉर ये कौन सा फ्लाई है सर, डिस्क टाइप, सो डिस्क टाइप फ्लाईव्हील के लिए, डिस्क का मतलब कंप्लीटली मास पूरे डिस्क पे स्प्रेड हुआ सर, कैन यू टेल मी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, रिम टाइप में पूरे रिम पे रहता है सर, इट विल बी एम आर स्क्वायर, डिस्क टाइप में क्या होता है सर, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी एम आर स्क्वायर बाई 2, याद है सर आपको, इज इट ओके सर, क्या ये सही है या गलत है सर, यस, अब देखो, ही इज आस्किंग दिस, तो एनर्जी क्या पूछा सर, काइनेटिक एनर्जी, इट इज हाफ आई, आई इज एम आर स्क्वायर बाई 2, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, देखो, सो द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, what is the mass sir, mass is 10 kg and the radius is 0.4 by 2 into omega square, omega is 10 pi का होल स्क्वायर, बताओ सर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 395 कुछ आ रहा है ना, यस,
चलो विल टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, 2 मिनट्स का ब्रेक ले लो. चलिए, ओके. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है. व्हाट इज ड्वेल? आफ्टर रीचिंग एट द टॉप, the follower doesn't move. Cam rotates, but the follower something like this. इधर देखो, अरे राइज हो रहा है, वहीं पे रुक के फॉल. So this is dwell, wherein the follower remains same and cam rotates. To which cam rotates during the period, follower remains at the highest. Yes, this is the correct answer. Is it okay? Yes. ये करो. हाँ ये करो, दिखते हैं सर. Come on, come on. Come on, come on. I have a question, sir. Is it a compound gear or simple gear train? क्या ये सिंपल गियर ट्रेन है या कंपाउंड गियर ट्रेन है सर? बोलो सर. आई वांट टू सी. कंपाउंड. ओके. क्यों सर? व्हाई सर? कैन यू गिव मी द रीजन? व्हाई सर? एवरीवन इज सेइंग कंपाउंड गियर, बट द आंसर इज रॉन्ग. इट इज अ सिंपल गियर ट्रेन. ध्यान से सुनो. देखो, इफ यू सी दिस शाफ्ट, मिडिल वाला शाफ्ट, you have a gear R, you have a gear Q, but मुझे बताओ, is gear R in contact with any other gear? क्या ये gear R, देखो, Q इसके कांटेक्ट में पीके और Q इसके कांटेक्ट में है, मतलब ये फर्जी है सर. इस शाफ्ट पे देखो, इस शाफ्ट पे एक गियर है, दूसरा गियर है, लेकिन ये सिंपली घूम रहा है. दिस आर इज नॉट इन कांटेक्ट विथ एनी ऑफ दिस. तो दैट्स व्हाई आई सेड एक शाफ्ट पे मोर देन टू या मोर देन टू होने से कंपाउंड नहीं बनता. इट शुड बी एक्टिव, मतलब वो इट शुड बी इन कांटेक्ट विथ सम अदर. ये रह के भी कोई यूज नहीं है सर. नहीं आया समझ में?
यू हैव नॉट अंडरस्टूड सर। देखो अगर आप देखेंगे ये गियर इज इट इन कॉन्टैक्ट विथ एनी अदर गियर? गॉट इट ना? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप ना सोचो सर, दैट्स व्हाई माय क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई टोल्ड वेरी क्लियरली एक्टिव गियर्स बोला सर मैं। एक सेकंड, ये चार्जिंग पूरा खत्म हो गया इसको मैं, एक सेकंड मैं कुछ पूछता हूं सर आपसे, अभी वॉइस आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए। देखो एक सेकंड, देखते हैं एक बार। अभी आएगा। हेलो, हेलो। अभी आएगा, हाँ आ गया। यस, ओके। नाउ देखो, तो इज देयर एनी यूज ऑफ दिस? बिल्कुल नहीं है सर। अब क्या करेंगे सर, ध्यान से सुनो। नाउ ही इज आस्किंग द स्पीड ऑफ एस। क्या करेंगे सर? देखो देखो एक सेकंड, कैन आई राइट स्पीड ऑफ p by speed of s? This is p, this is s. So I think I can write this as speed of p by speed of s into speed of q by, ना मैं कुछ करेगा रे। Is this correct? Any problem, sir? Is this correct? So if you are not happy, you can remove this NQ, you get this. So speed of P. What is the speed? Number of teeth are also given. Ek second, ek second, ek second. So gear P is rotating at 400 RPM, gear P. So speed of P is equal to 400 RPM. ठीक है सर। Okay. Now, one more thing. Number of PQRS, number of teeth on P, number of teeth on Q, number of teeth on R, number of teeth on S. P का टीथ कितना है सर? 24। Q का कितना है सर? 45। R का कितना है सर? 30। एंड S का कितना है सर? 80। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट सर? यस। नंबर ऑफ टीथ आर गिवन। नाउ देखो, so these two are in mesh. When these two are in mesh, can I write NPTP is N1T1 is N2T2? अरे यार, these two are in mesh. So NPTP is NQTQ and Q and S are in mesh. So NQTQ is equal to NSTS. बिल्कुल सही है सर। अब देखो, now मेरे प्यारे बच्चों, therefore NP is 400 divided by ns. What is np by nq? np by nq, इधर देखो, np by nq is tq by tp. What is nq by ns? nq by ns is ts by tq. Okay, so यहां ये, so this is 400 by ns is equal to tq ts. tq is 45 and ts is 80 divided by tp is 24 and tq is 45. So I think 45 is gone. 41s, 45s. So ns will be equal to 5 into 24. ये ns इधर आएगा 24 5 कितना आ रहा है सर? 20. Is it 120? Is it 120 sir? Anyone? Is it a simple gear train or compound gear train?
बोलो। हाँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। इट्स अ सिंपल गेट। ठीक है, चलो। अच्छा क्वेश्चन है सर ये। एक्चुअली थोड़ा चार्जिंग का प्रॉब्लम है सर, तो आप मुझे तो कुछ समय देंगे तो तब तक ये चार्ज हो जाएगा। So that I can complete questions. This is a good question, sir. In a slotted crank and slotted lever quick return mechanism used in shaper, the beginning and end of the stroke occurs when? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। आंसर दीजिए सर, देखते हैं। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द आंसर। I'll tell you. I'll tell you. Don't worry, sir. मैं देता हूं सर, डोंट वरी। डोंट वरी सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। डोंट वरी, explanation is required here. यार, डोंट वरी। मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो, अब यहां से हम एक लिंक से एक, अरे यार ये नहीं जा रहा है ना, यहां एक लिंक कनेक्ट करके यहां पे हम टूल को रखते हैं, तो क्या होगा सर, एक्सट्रीम स्ट्रोक पे अब उसके बाद ये राइट गया मैक्सिमम रेट, अब उसके बाद लेफ्ट आएगा सर। सो व्हेन दिस लीवर बिकम्स टेंजेंट टू द क्रैंक सर्कल, तो तब ये एक्सट्रीम पोजिशन पे रहेगा। तो व्हाट इज द एंगल सर, ये एंगल क्या है सर, ये लीवर और ये पोजिशन में 90 डिग्री, ये लीवर, ये क्रैंक और ये लीवर, सो दिस इज द फिक्स्ड लिंक सर। कुछ आइडिया है सर? तब व्हेन द सर्कल बिकम्स टेंजेंट, अगर ये टेंजेंट है, ये तो इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, इसका मतलब ये नॉर्मल होना चाहिए, इट शुड बी 90 डिग्री। सो हैव यू अंडरस्टूड सर? परपेंडिकुलर जब होगा तभी आएगा सर। तो देखो, अगर यहां से फिर रिटर्न आ रहा है, रिटर्न के बाद देखो, अब देखो, सो ये रिटर्न आएगा, सो दिस इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, फिर इट्स एट द एक्सट्रीम राइट, सो राइट में ये इधर आएगा, लेफ्ट में ये इधर आएगा, इसका मतलब दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी परपेंडिकुलर। ऑल दिस आई हैड एक्सप्लेन्ड इन माय रेगुलर क्लास। सो व्हाट इज द आंसर सर? अच्छा क्वेश्चन है सर ये। व्हाट इज द आंसर? When the crank is perpendicular to the lever. Yes. ये करो। Where does the instantaneous rotation of the piston in a slider crank mechanism? देखो, देखो, piston is ये reciprocate कर रहा है सर, तो जब ये reciprocate कर रहा है, where will be the instantaneous center of this with respect to this? Anyone?
What is sliding, sir? Sliding is rotation at infinite radius. So it will be, uh, इस लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर होगा, बट एट इनफाइनाइट ऑल दिस आई हैड एक्सप्लेन्ड. तो देखो सर, व्हाट इज एक्चुअली स्लाइडिंग. ओके, एक सेकंड मुझे बताइए सर, अगर ये लिंक फिक्स्ड 1 है, ये 2 है, वेयर इज I12, वेयर इज I12, वेयर इज I12, एनीवन, वेयर इज I12, वेयर इज I12, पॉइंट ऑफ रोटेशन. देखो ये I12 इधर रहेगा सर, I12 एट द पॉइंट. देखो ध्यान से सुनो, देखो अब ये घूम रहा है. सो इफ द रेडियस इज मेड वेरी लार्ज, अब ये क्या होगा सर, इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट. अगर इसका रेडियस इनफाइनाइट होगा, ऑलमोस्ट फ्लैट, इसका मतलब, सो अलोंग दिस इट शुड बी, इस स्ट्रोक के परपेंडिकुलर होना चाहिए, बट एट इंफिनिटी, मतलब ये बहुत ही ज्यादा, देन ओनली आई से, देखो एट इंफिनिटी परपेंडिकुलर द लाइन ऑफ स्ट्रोक, ये बहुत ही, स्लाइडिंग में इट विल बी एट इंफिनिटी, लेकिन लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर होगा. इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया. ये आंसर दीजिए. Come on, come on. Anyone? देखिए सर, a 4 bar mechanism ABCD shown. The linear velocity at point B. This is point B. Is given. How much is that? It is 0.5 meter per second. Then the velocity at point C. देखो सर, ये वाला है, बहुत बढ़िया. क्लैरिटी से दिया है सर, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है सर. क्या मैं बोल सकता हूं, इस लिंक को देखो, देखो इस वेलोसिटी को, ये परपेंडिकुलर है मेरे प्यारे बच्चों, ये परपेंडिकुलर है, करेक्ट. इस, देखो इस वेलोसिटी को, टू दिस वेलोसिटी दिस इज परपेंडिकुलर, इस वेलोसिटी को ये परपेंडिकुलर है सर, ये परपेंडिकुलर है, इस वेलोसिटी को, इस वेलोसिटी को ये परपेंडिकुलर है. तो कैन आई कॉल दिस एज इंस्टेंट इन सेंटर? बहुत बढ़िया सर, डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया. सो इफ आई वांट वीबी, व्हाट इज वीबी? आर ओमेगा. देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा. इस मान लो ये कंप्लीट एक सॉलिड लिंक है, तो इसका ओमेगा, रिजिड बॉडी के लिए ओमेगा एक ही होता है, एक बॉडी के लिए. सो ओमेगा इज v बाय आर. ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो कैन आई राइट va बाय आर ए इज इक्वल टू vb बाय आर बी? यस सर, va, व्हाट इज, हाँ ये कौन सा पॉइंट है सर? vc है ना सर, ये b है, तो b है तो ये c है. हाँ, कैन आई राइट दिस एज VC by RC लिख सकता हूं सर. ओमेगा इज कांस्टेंट इस बॉडी का, तो VA, VB, RB, दिस इज RB, दिस इज VC, RC. तो कैन आई राइट VC इज नॉट नोन, एंड व्हाट इज RB? RC, ये RC, दिस इज द रेडियस, दिस द रेडियस, दिस द रेडियस, इट इज 0.1, should be equal to VB. Already VB is 0.5 by RB. What is RB sir? This is about the center, this is the point of rotation. इस सेंटर से ये घूम रहा है, it is 0.25. What is the value of VC sir? गलत है सर. Correct? Is it correct? What velocity of C पूछा है ना? अरे yes, should be correct ना? 0.2 कुछ आ रहा है सर, कैलकुलेट करके देखना. Is it 0.2? Should be correct ना? 0.2 आ रहा है. कैलकुलेशन मेरा प्रॉब्लम नहीं है सर, आपका है. अरे यार, देखो ये भी नहीं आ रहा सर आपको. देखो अब ये, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, तो यहां का वेलोसिटी चाहिए अगर इस पॉइंट पे घूम रहा है. आर ओमेगा, आर ओमेगा, ओमेगा तो कांस्टेंट है, वी बाय आर इज कांस्टेंट, ये ओमेगा इज कांस्टेंट ना, वी बाय आर इज कांस्टेंट, तो वीबी
by RB is equal to VC by RC. Correct? Should be correct, na? Yes. Come on, come on. The fluctuation of क्वेश्चन को नीटली पढ़ो सर. क्वेश्चन को नीटली पढ़ो सर आप. देखते हैं सर. Come on, come on. D. C. देखते हैं सर. I'm giving you time. He said fluctuation of energy. गलत. Difference between maximum and minimum energy is known as maximum fluctuation of energy. Difference between the maximum and minimum energy is known as maximum fluctuation of energy. वो बोला fluctuation energy. मीन लेवल से, मीन से जो ऊपर जा रहा है, मीन से जो नीचे आ रहा है, इसको बोलते हैं fluctuation of energy. Fluctuation of energy is वेरिएशन अबोव एंड बिलो द मीन स्पीड. ये मैक्सिमम नहीं पूछा सर, ये वर्ड मैक्सिमम नहीं है सर. इट इज द वेरिएशन ऑफ एनर्जी अबोव मीन लेवल से ऊपर इज फ्लक्चुएशन, नीचे इज आल्सो फ्लक्चुएशन. ओके, सो देयरफॉर it is the variation of energy above and below of the resisting torque is known as fluctuation of energy. Is it okay? अब देखो ये आंसर दीजिए सर. अब देखो, now you give the answer. Now you give the answer. देखो, he is asking maximum fluctuation of energy. Fluctuation means change. It is the maximum energy minus minimum energy. So the difference between maximum and minimum energy is nothing but fluctuation of energy. ये बहुत सही है सर. ठीक है. Can you tell me what is coefficient of fluctuation of speed? What is coefficient of fluctuation of speed? It is nothing but fluctuation of speed, maximum minus minimum by average. So what is average, sir? What is average, sir? It will be maximum plus minimum by 2. So ये ऊपर जाएगा. This is known as coefficient of fluctuation of energy. Yes. Is it okay? This is the coefficient of fluctuation. Can you tell me what is coefficient of fluctuation of energy? Coefficient of this we have seen, coefficient of fluctuation of speed. It is nothing but maximum minus minimum by average. What is the coefficient of fluctuation of energy? Come on, come on, come on. Oh, yes. एक सेकंड, एक सेकंड. हे भगवान, पूरा गिर गया देखो. हे भगवान, क्या हो रहा है आज? बच्चों को सिखाने में प्रॉब्लम लग रहा है. हे भगवान. गिर गया रे, गिर गया रे. अरे हाँ,
What is coefficient of fluctuation of energy? It is the maximum fluctuation of energy का difference by work done per cycle. पूछ सकता सर ये. Is it okay? चलो. Oh, oh. Come on, come on. 36 क्वेश्चंस किए सर. बहुत बढ़िया. मतलब इट्स नॉट जस्ट क्वेश्चंस, थ्योरी देते जा रहे हैं सर हम. बोलो सर. So I'm giving you time. Give the answer. Sir, I'm giving you time. I want the answer. देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे. Which of the following is correct? And one more thing I'm telling you. In examination, you should see whether he is asking correct statement or wrong statement, because sometimes he may be asking wrong statement, but you may be giving correct statement. So that you should take care. देखो sir. Which of the following is correct? Flywheel reduces speed fluctuation during the cycle for a constant load. बिल्कुल सही है सर. When the load is constant, flywheel reduces the speed fluctuation. But flywheel does not control mean speed. Yes, flywheel does not control mean speed. It controls fluctuations in a cycle for a given load. So yes, सही है सर. Flywheel does not reduce speed fluctuation during a cycle. No, it controls, it reduces speed fluctuations. ये गलत है. Governor controls speed fluctuations for a constant load. क्या governor constant load को काम करता है सर? Governor तभी action में आएगा when the load is changing. When the load is changing, the fuel quantity will change. If the load is more, we supply more fuel. If the load is less, we supply less fuel. So ये constant load is गलत. Again governor बोल रहा है constant load. गलत sir, this is गलत. All are गलत. Only A is correct. बहुत बढ़िया sir. अच्छा सीख रहे हैं सर आप. देखो, a gear of 40 teeth, a gear of 40 teeth drives a pinion by doubling the speed. The pinion speed is twice the gear speed. One is gear and two is pinion. ठीक है सर. Gear of 40 teeth drives a pinion by doubling the speed. If the module is 3 mm, what is the central distance? I think just now I gave you the equation. Central distance is equal to d1 plus d2 by 2. So this can also be written as m is equal to d by t, or d is equal to mt. So d1 is equal to mt1. Don't write m1 m2. And d2 is equal to mt2. ठीक है sir. So central distance is given by d1 is mt1 and d2 is mt2 by 2. So central distance is given by m by t2 into t1 plus t2. Absolutely fine. So the central distance is given by, but यहाँ पे t2 is not known ना, करेंगे sir. We also have one equation, n1 t1 is equal to n2 t2. What is n1? No problem. T1. What is t1? 40 is equal to n2. What is n2? 2n1 into t2. t2 कितना दिया sir? What is the value of t2 given? नहीं, वो तो कैलकुलेट करना है सर. That value we should calculate. So n1 is gone. So t2 will be equal to 20 if I am not wrong. T2 is 20 ना? T2 is 20. Put करो यहाँ पे. So the central distance is given by m module. Module कितना दिया सर? 3 mm. So if the teeth has no unit,
So whatever the unit you have for module, same will be for central distance. So module is 3 by 2, T1 plus T2. T1 is 40 and T2 is 20. So ये 60 by 2, तो कितना आ रहा है सर? 60 by 2 is 30. I think it is 90 mm correct, sir? Yes. So this is the fixed link 1, this is link 2, this is link 3, and this is link 4. How many instantaneous centers are there? Anyone? Instantaneous center is, it is the relative motion between any two links. Out of n links, two combination, because instantaneous center is one with respect to other. So combination है sir, whether it is 2 1, it's not permutation, whether it is 2 1 or 1 2 वो तो same ही होगा. So nc2 can be written as factorial n by factorial 2 into n minus 2 factorial. NCR का तो expansion जानते ना sir. So number of instantaneous center is factorial n can be written as n into n minus 1 into n minus 2 factorial by 2 factorial is 2 into n minus 2 factorial. तो ये एक कट गया. So number of instantaneous centers are n into n minus 1 by 2. How many links are there? 1. ये fixed is 1, 2, 3 and this piston is 4 sir. Piston is 4. 4 links है. तो 4 into 4 minus 1 by 2. So 2 ones, 2 twos, 3. 3 into 2 is 6. Answer is 6. Is it okay? ठीक है. Come on. चलो stop करें सर. यहाँ पे चार्जिंग भी हो रहा है. सो लेट्स स्टॉप हियर सर. अभी टाइम मिला तो फिर करेंगे. तो होप यू एंजॉयड. प्लीज कमेंट्स के फॉर्म में जरूर लीव करना. तो आई एम प्लानिंग अ ग्रैंड टेस्ट ऑफ इसरो, ऑल सब्जेक्ट्स पुट टुगेदर. शैल आई प्लान? तो प्लीज आप कमेंट में लीव करना सर. लीव. सो आई हैव कवर्ड एचएमटी, आई हैव कवर्ड थर्मो, आई हैव कवर्ड फ्लूइड, मशीन डिजाइन कवर किया, मैथ्स कवर किया सर, और क्या कवर किया सर? सॉम कवर किया सर. तो कमेंट में लीव करना सर आपको क्या चाहिए और ये क्लास कैसा लगा. प्लीज लीव अ कमेंट, बिकॉज क्लास के बाद व्हेन द सेशन एंड्स आई वांट योर कमेंट्स, अदरवाइज आई विल नॉट टेक. ओके चलो. ओके बाय बाय. प्लीज शेयर योर फीडबैक, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आई डोंट माइंड. ओके चलो, आई एम एंडिंग द सेशन. बाय बाय. थैंक यू. बाय.